کبھی کبھی بدقسمتی کے پردے میں خوش نصیبی ہوتی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے۔ اس میں خوش نصیبی کی کیا بات نظر آتی ہے تمہیں؟ نہ چودھری اکبر نے مجھے اور تمہیں اٹھایا ہوتا، نہ ہم فرار کی کوشش کرتے اور نہ پکڑے جاتے تو نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ اکبر کے شکاری کتے ہماری بو سونگھتے، ہمارا تعاقب کرتے۔ آج ہم شاہی مہمان ہیں۔ مجھے قید نہ کیا جاتا تو اکبر جیسے خطرناک دشمن کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ مجھے مروا دیتا اور تم سے شادی کر لیتا، یا شادی نہ بھی کرتا تو تم اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ وہ تو اپنی باپ کی سننے والا بھی نہیں۔ آج انور علی کی مدد کر کے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ایک ظالم اور غاصب کو کیفری کردار تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا اور حقدار کو اس کا حق دلایا، تو یہ رضا الہی تھی۔ اس نے مجھے وسیلہ بنایا، تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ تمہاری مشکلات بھی تو میری وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے ہنس کے کہا، لو، اب میں کہوں کہ جان بچ جانے کے بعد میں تمہارے گھر نہ پہنچتا تو کچھ نہ ہوتا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو۔ اتنی خرابی کے بعد جو ہوا اچھا ہوا۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ اکبر نے غلط رویہ تو اختیار نہیں کیا تھا؟ مجھے بہت فکر تھی تمہاری، اور مجھے تمہاری۔ ماں جی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں اکبر نے حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ بڑے چودھری صاحب نے مجھے تو اکبر کی ماں کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے میں محفوظ رہی۔ اکبر کو شادی کی جلدی پڑ گئی تھی، مگر ماں نے اسے کہا کہ شرم کرو، ابھی لڑکی کے باپ کا 40واں بھی نہیں ہوا، وہ پہلے ہی دکھی ہے، اس پر ظلم نہ کرو۔ اکبر مجبور ہو گیا، تاہم بابا کے جہلم کے بعد وہ انتظار نہ کرتا تو میں بھی طے کر چکی تھی کہ 1 مہینے میں نکل جاؤں گی تمہارے ساتھ، اور یہ نہ کر سکی تو اکبر کی جان پہلے لوں گی اپنی بات میں۔ ظاہر ہے اس کے بعد مجھے زندہ کون چھوڑتا۔ اس کی بیوی شانو پہلے ہی مجھ سے سخت خفا تھی، جیسے میں نے اس کے شوہر کو پھانس لیا تھا۔ میرا اپنی صفائی میں کچھ کہنا لا حاصل تھا۔ ساس کی وہ پہلے سے دشمن ہے، حالانکہ وہ اکبر کے تایا کی بیٹی ہے تو اس کی خالہ زاد بھی ہے۔ دوہرا رشتہ پہلے سے تھا، لیکن یہ تیسرا رشتہ قائم ہوا تو پہلے والی بات الٹی ہو گئی۔ میں نے کہا، ایسا ہونا لازمی ہے۔ لازمی کیوں ہے؟ شادی کے بعد دلہا کی ماں اور بیوی دونوں کے خون میں نئی دشمنی کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ وہ میری بات سمجھی نہیں۔ اکبر کی ماں کا رویہ تو پہلے جیسا ہی ہے، مگر بھانجی کے لیے اب وہ خالہ نہیں، ساس ہے۔ اکبر کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ شوہر سے لڑے گی تو الٹا نقصان کرے گی۔ مرد کو بھلا دوسری یا تیسری شادی کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر وہ طے کر لے تو اسے روکنے کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ ریشم بیچاری تو خود مجبور ہے، مگر اس نے اس کو بھی ساس کی حمایت سمجھا، بیٹے کے لیے۔ پھر میں نے اس سے مدد مانگی کہ وہ کسی طرح حویلی سے نکلنے میں میری مدد کرے۔ میں یہاں سے نکل جاؤں گی تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ میں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اکبر میری لاش سے شادی کرے گا، مجھ سے نہیں۔ میں اسے مار دوں گی یا خود مار جاؤں گی۔ اس کے بعد شانو نے مجھ پر اعتبار کیا اور کہا کہ میں رات کو تیار رہوں، وہ مجھے فرار کرا دے گی۔ میں نے کہا، اکیلی کہاں جاؤں گی میں؟ سلیم سے بات کر لوں پہلے، جیسے ہی اسے موقع ملا ہم دونوں ایک ساتھ نکل جائیں گے۔ وہ بیچاری جو مدد کے جرم میں ماری گئی، شانو کی خاص ملازمہ تھی۔ اکبر نے بیوی کو بھی مارا کہ تو نے میرے خلاف سازش کی تھی۔ یہ مخبری کس نے کی تھی کہ ہم صبح فرار ہوں گے؟ اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن ظاہر ہے اندر ہی کسی نے کوئی بات سن لی۔ شانو نے بے وقوفی نہیں کی تو اس کی ملازمہ نے کی ہوگی۔ اس معاملے میں میرا شانو پر اعتماد کرنا بے رسک تھا۔ میری مدد تو خدا نے کی، یا شاید مجھے انور کی رہائی کا وسیلہ بنایا۔ مجھ سے کہیں زیادہ ظلم اس پر ہوا تھا۔ ماں نے اس کی زندگی تو بچا لی، مگر وہ اس کو رہائی نہیں دلا سکتی تھی۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اکبر نے کیسے بڑے بھائی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر ایسے عمل کر رہا تھا کہ ماں بھی بے خبر تھی۔ وہ انور کو آہستہ آہستہ قتل کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کیسے؟ ریشم کنفیوز ہو گئی۔ اسے ایک وقت کے کھانے میں زہر دیا جا رہا تھا۔ زہر؟ ریشم نے دہل کے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ پھر وہ مرا کیوں نہیں تھا؟ ریشم ایسے زہر ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں، اندر پہنچنے کے بعد
पहले थोड़ी थोड़ी मिकदार में दिए जाते हैं, फिर मिकदार बढ़ाते जाते हैं ताकि जिस्म आदी ना हो। बंदा घुल घुल के मरता है। रिस्क, मौत और जिंदगी सब अल्लाह के हाथ में है, किसी बंदे के हाथ में नहीं। उसने मुझे वसीला बना दिया। मैंने अनवर की मदद की और हम एक साथ निकल आए। उसके पैरों में जंजीर थी। मुझे अभी बेड़ी नहीं पहनाई गई थी। खाना लाने वाले के लिए दरवाजा खोला गया तो मैंने मुहाफिज को काबू कर लिया। और अगर वो तुम्हें मार देता फिर? मैं ये नहीं कहता कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं था या खाली हाथ लड़ना मुझे अच्छा आता है। बस ये खुदा की मर्जी के सिवा कुछ नहीं था। मैंने उसे बांध के डाला और अनवर के साथ निकल आया। अब तुम देख लो, जैसे एक मच्छर ने नमरूद को मार दिया था, मेरे जैसे अजनबी और कम हैसियत आदमी ने हुकूमत उलट दी। ये मेरा मंसूबा हरगिज नहीं था। किसी ने दरवाजे को बाहर से बजाया। लैला मजनू की खलवत में फर्क ना पड़े तो मैं अंदर आ जाऊं? अनवर ने कहा। हद करते हो यार, ना हम लैला मजनू हैं और ना ही तुम कोई गैर हो। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। पहली बात मैं नहीं मानता, दूसरी मान लेता हूं। रेशम का रंग लाल हो गया। वो खामोशी से निकल गई। मैंने कहा, तुमसे कोई पर्दा नहीं, ये सच है। अभी तक सच यकतरफा नहीं होता। उस लड़की के बारे में शर्त जीत सकता हूं मैं। वो तुम्हारी मोहब्बत में गर्क है गोटे गोटे। और जब इश्क की आग एक तरफ भड़के तो दूसरा कैसे महफूज रह सकता है? यार, मैं अभी तक नौरीन को भूल नहीं सका। हालांकि उसका मिलना भी यकीनी नहीं, और मिल जाए तो उससे मेरी मोहब्बत भी यकतरफा है। उसके इश्क में सिर्फ मैं मुब्तला हूं, वो किसी और के इश्क की मरीज है। ऐसा फिल्मों और ड्रामों में होता है। आपकी ये थ्योरी वहां भी गलत साबित हो रही है। अभी तक मेरे इश्क की आग से वो महफूज है। चलो यार, इस मुश्किल का हल भी निकल आएगा। आजकल मजनू दो सच्चे इश्क कर सकता है और दोनों को पा सकता है। अभी बताओ, तुम अंदर से कैसा महसूस करते हो? बाहर से तो ठीक लगते हो। मैं अंदर से भी 100% फिट हूं। मैंने कहा। वो सोफे पर टिक गया। हाँ, एक बात है जो शायद तुम्हें कायल न करे। छठी हिस्स की वार्निंग के किस हद तक कायल हो तुम? वाजबी हद तक। जवाब 100% हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये दरअसल आदमी के अंदर की सोच होती है। ऐसे खौफ जिनका वो इदराक या इतराफ नहीं कर सकता, उन्हें अपना वहम समझ के टालता रहता है, मगर वो भी 100% वहम नहीं होते। बिल्कुल ठीक। अब मसला बताओ। तुम यकीन करो या ना करो, आज दिन में जो शख्स मुझे कत्ल करने आया था वो सिर्फ माजूल हुक्मरान यानी अकबर बादशाह का हामी और वफादार नहीं था। उसे दुख शायद हो क्योंकि वो अकबर का बॉडीगार्ड था और ड्राइवर भी, लेकिन उसकी वफादारी के जज्बे का इस्तेहसाल किया गया। उसे बगावत पर उकसाया गया, गालिबन गुमराह किया गया कि अब तुम्हारी भी खैर नहीं। जो वफादारी में पेश पेश थे उनको फारिग कर दिया जाएगा। कैसे फारिग किया जाएगा, ये किसी कायदे दस्तूर के मुताबिक नहीं होगा। हवेली की रिवायात में एक से वफादारी दूसरे से गद्दारी का जुर्म समझी जाती है। छोटी बेगम साहिबा की खास मुलाजमा को अभी कल दफन किया गया है। बहुत जल्द दूसरे नमक हराम भी गाड़ दिए जाएंगे जिन्होंने वली अहद की बजाय उसका साथ दिया जो हकदार नहीं था। मैं उसे गौर से देखता रहा। तुम्हारे ख्याल में उसे किसने उकसाया? उसने जो मेरी हक तलफी का जिम्मेदार था, जिसने गलत फैसला किया था। तुम्हारा मतलब है बड़े चौधरी साहब? हाँ, उनको वो खतरा अब सर पर मंडलाता नजर आ रहा है जिसे उन्होंने अपनी दानिश में बर वक्त डाल दिया था। उनके आबा व अजदाद की सल्तनत ये जागीर है। मैं जागीरी निज़ाम की मुखालफत करने वाला उसकी हिफाजत कैसे करूंगा? उनकी सोच का जानशीन तो अब नहीं रहा। वो खुद कितने दिन रहेंगे? ये उनके इख्तियार में नहीं कि तख्ता उलट दिया गया है, उसे फिर से सीधा कर दें, क्योंकि उसका एक ही तरीका है। तुमने शायद उनके रवैये पर गौर नहीं किया हो। वो मुतफक्किर थे। वो माँ की तरह गैर जानिबदारी का अजाब नहीं झेल सकते। उनके लिए जानिबदारी एक सियासी ज़रूरत है। उनकी खामोशी के पीछे अंदेशे हैं। उन्होंने यकीनन मुश्किल फैसला किया, फिर इम्कानात को देखा जिसमें उन पर इल्ज़ाम न आए। तमाम मोहरे चेक किए।
कौन इस हद तक बेवकूफ़ और जज्बाती है कि उसे इस्तेमाल किया जा सके और फिर सही आदमी चुन लिया। अगर ये नजरिया दुरुस्त है तब भी खतरा तो टल गया। अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा। खतरा टला जरूर है, खत्म नहीं हुआ। बड़े चौधरी साहब एक नाकामी को शिकस्त मान सकते हैं, आखिरी शिकस्त नहीं। मैंने कहा, फिर अब वो क्या कर सकते हैं? आज उस हमला आवर का मारा जाना एक दर से इबरत था उनके लिए जो अपने दिमाग में गलत किस्म की तवक्कुआत रखते थे। सबको एक सबक मिला कि किसी ने वफादारी को जाहिरी रखा तो मारा जाएगा। ये मामूली हैसियत के मुलाजिम वैसे ही बहुत कम हिम्मत होते हैं। उन्हें मालूम है कि उनको दर से इबरत बना दिया जाता है। मैं जो था या समझा जाता था अब नहीं हूं। हालात की सितम ज़रीफी ने मुझे सख्त दिल बना दिया है। मालूम है मैंने आज क्या गैर इंसानी हरकत की। मैंने उस हमलावर की लाश को नंगा करके हवेली के सैन में उल्टा लटका दिया। मेरा दिल लरस गया। ओ माय गॉड, अनवर अली, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी यार, बल्कि मजबूरी थी। उस मंजर ने सबको दहला दिया। जब उसकी बीवी ने लाश के सामने सीना कोबी और बच्चों ने चीख पुकार मचाई तो मैं बरामदे में गन लिए बैठा था। मेरी माँ कमरे से नहीं निकली। रेशम के बारे में सुना है बेहोश हो गई थी, लेकिन उसने जिक्र नहीं किया मुझसे। अब किसी में हिम्मत तक नहीं है बात करने की। मेरी भाभी ने खुद अपना सामान उठवाया और मेरा पुराना कमरा खाली कर दिया। तुम बहुत बड़े सियासी बाजीगर हो, ये मुझे अंदाजा न था। वो हंसा। खुद मुझे कब अंदाजा था? एक और दिलचस्प बात सुनो। दोपहर के बाद मकामी थानेदार आ गया। अंदर आते ही लटकी हुई लाश देख के वो जैसे पत्थर का हो गया। वो ऐसे किसी मंजर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने मुझे देखा कि रिवॉल्वर मेरे सामने मेज पर रखा है और मैं कॉफी पी रहा हूं। एक लम्हे में थानेदार के अंदर का बुज़दिल आदमी लरस गया। ताहम वो बड़ी मतानत से आया और मैंने हाथ मिला के उसे दूसरी कुर्सी पर बैठने की दावत दी। फिर उसके बात करने से पहले ही मैंने कहा, थानेदार के लिए चाय लाई जाए। उसने मोहतात लहजे में पूछा कि चौधरी साहब ये क्या है? मैंने पुरसुकून रहते हुए जवाब दिया, वही जो तुम्हें नजर आ रहा है। जाहिर है तुम वजह जानना चाहते हो। इसने मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर गोली चलाई थी जो मेरे मेहमान को लगी, मगर उसकी जान भी महफूज रही। वो सिर्फ जख्मी हुआ, इसलिए दूसरा फायर करने से पहले ही मैंने इसका काम तमाम कर दिया। थानेदार कुछ देर चुप रहा। उसने ये नहीं कहा कि सजा तो आपने दी, वो दुरुस्त है, मगर ये तमाशाए इबरत किस लिए? ऐसा वो खुद भी करता है थाने में आने वालों के साथ। मैंने उसकी तशरीफ आवरी का मकसद पूछा तो जो सवाल वो जारहाना अंदाज में करता वो बहुत मोहतात अंदाज में किया कि छोटे चौधरी साहब नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा कि आप जानते हैं कि वो शौकीन मिजाज और सैलानी तबीयत के मालिक हैं। मैंने भी कल रात उन्हें खाने पर देखा था। इस पर वो मजीद चौंका क्योंकि गुज़िश्ता रात तो उसकी मालूमात के मुताबिक मैं कैद खाने में बंधा पड़ा था। उसने कहा कि मुझे बड़ी चौधरी साहब से काम था, तो मैंने कहा कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है, उम्र का तकाजा है, कुछ दिल का मसला है, कोई काम है तो मुझे बताएं। वो कहने लगा कि आपसे तो बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है। इसका मकसद मुझसे ये सुनना था कि मुलाकात कैसे होती। मैं तो कैद खाने में था, मगर मैंने उसे सख्त मायूस किया। मैंने कहा, दरअसल मेरा ध्यान ज़्यादातर किताबों की दुनिया में रहता है। इतना अरसा बाहर पढ़ के आया, ताल्लुकात भी बहुत हैं बाहर, उनसे अब नेट पर राब्ता रहता है। ये ज़मीन जायदाद के तमाम मामलात अब्बा जी और भाई जी चला रहे थे। अब अब्बा जी ने कहा कि मियाँ कुछ इधर भी ध्यान दो। भाई जी का मिजाज ज़रा रंगीन है, उनके मशागल भी दूसरी तरह के हैं, आप तो जानते होंगे। तो अब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है और भाई जी को छुट्टी दे दी है कि आप मौज करने के लिए पैदा हुए हो, करो मौजा। हम तो अभी छड़े छांट हैं, देख लेंगे ये दुनियादारी के मामलात। तो बस उनको मिल गई खुली छुट्टी। वो मजीद परेशान हुआ कि ना मैं शिकवा कर रहा हूँ ना शिकायत का मौका दे रहा हूँ। कैसे कहे कि मैंने कुछ और सुना था। क्या सुना था और किससे, ये बताना उसे मुश्किल हो जाता
कैसे कहता कि बड़े चौधरी साहब से सुना था। तुम्हें यकीन है कि उन्होंने शिकायत की होगी? 100%। और मैं पुराना फकीराना मिजाज वाला अनवर अली होता तो वो साफ कहता कि मुझे शक है कि आपने बड़े भाई को मारा नहीं तो इसी हवेली में कैद कर रखा है। मेरा हलाकू खान वाला रोल देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे अंदेशा है कि वो अब्बा जी के कहने पर हुक्काम वाला तक मामला पहुंचाएगा और फिर खाना तलाशी के वारंट लेकर आएगा। कुछ तफ्तीश करेगा पुराने मुलाजमों से मेरे बारे में। शायद कोई बक दे कि मैं तो कैद में पड़ा था नीचे तह खाने में, वहां अब अकबर अली पड़ा है और इसका जिम्मेदार है ये मेहमान। फिर ये भी पता चल जाएगा तुम किस किस्म के मेहमान हो। रेशम का मामला सामने आए या ना आए, ये भेद जरूर खुल जाएगा कि सलीम तुम्हारा असल नाम नहीं। तुम तो सखर जेल से डाकुओं के साथ फरार हुए थे और सजाए मौत के मुंतजिर कैदी थे। बस इशारा काफी है, तुम धर लिए जाओगे। एकदम मेरे अंदर खतरे की घंटी बहुत बड़ा घंटा बन के गूंजने लगी। फिर क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, इन सब मामलात पर मैंने सोचा है। उस हमलावर की लाश तो मैंने थानेदार के सामने ही उतारने का हुक्म दे दिया था और ये भी कि उसकी तदफीन इज्जत और एहतराम से की जाए। हमारे मिजाज का दोगलापन पूरी तरह उसने देखा। ऐसी जिल्लत की मौत के बाद बाइज्जत तदफीन का क्या मतलब है? मैंने मौलवी को भी तलब किया और मरने वाले की बेवा को भी। हाँ, ये बताना भूल गया कि जब थानेदार आया तो वो लाश के सामने फर्श पर सर पटक रही थी, चिल्ला चिल्ला के मुझे कोस रही थी और ऐसे बयान कर रही थी कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। मैंने थानेदार के सामने ही ये हुक्म दिया था कि इस औरत को हटाओ यहाँ से, बहुत शोर कर रही है। फिर थानेदार के सामने ही उसे लाया गया तो मैंने उसको एक मुरब्बा जमीन देने और उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेने का हुक्मनामा भी जारी किया। ये सब ऐसी अदाकारी का मुजाहरा था जिस पर मुझे ऑस्कर अवार्ड भी मिल सकता था। मैंने जो डायलॉग्स बोले और जैसे मुतलकुल अन्नान सफ़ाक बाइख्तियार और ताकतवर हाकिम का रोल अदा किया वो मिसाली था। थानेदार की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि बड़े चौधरी साहब की बात भी करे। उसने देख लिया था कि हुक्म किसका चल रहा है। वो सलाम करके रुखसत हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि नई लाइन उसे अब्बाजी देंगे कि हाथ डालो उस मुअज़्ज़ज़ मेहमान पर। एक नहीं 2 मुकदमात उस पर बनाओ। एक हदूद ऑर्डिनेंस के तहत सारा गांव गवाही देगा कि वो रहीम बख्श के घर में रहा, जिंदगी में भी और उसके मरने के बाद भी, जहां रेशम भी थी। वो ना रिश्तेदार है ना इस गांव का। तफ्तीश करो एक रात और मालूम करो कि उसका कौन सा दादा यहाँ था। वो खुद सच बता देगा। दूसरा केस बनाओ रहीम बख्श के कत्ल का, जो उसने रेशम के साथ मिलके किया। ये 2 केस दर्ज करने के बाद उसे शहर की पुलिस के हवाले करो कि ये है तुम्हारा मफरूर मुजरिम, ले जाओ और लटका दो। अब तो एक और जुर्म में सजाए मौत पक्की है। यार बस करो, डराओ मत। ये बताओ मैं क्या करूं? आज रात तुम गायब हो जाओ, मगर अकेले नहीं, अकबर अली के साथ। मैं उछल पड़ा। अकबर अली के साथ? मेरा ख्याल था तुम कहोगे रेशम के साथ। थानेदार ये प्लान लेकर नया हमला करेगा कल परसों के, जब फंदा पड़ेगा तुम्हारे गले में और रेशम आएगी कानून की गिरफ्त में, तो मैं जमीन पर 7 बार नाक से लकीरें निकाल कर सौदा करूंगा। 3 शराइत वाज़ेह होंगी। तुम वापस वहीं तहखाने में, अकबर की हुकूमत बहाल, रेशम का अकबर से फौरी निकाह, उसके बदले में मेरी और तुम्हारी रिहाई और जिंदगी की जमानत। तुम जाओ जहां जी चाहे, तुम पर कोई केस ना रेशम पर, वरना उस हमलावर के कत्ल का इल्जाम भी मुश्किल नहीं। कौन साबित करेगा कि वो जवाबी कार्रवाई में मारा गया? यह साबित किया जा सकता है गवाहों के बयानात से कि मैंने उसे दरसे इबरत बनाने के लिए किसी कसूर के बगैर मारा। भाई मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? ये बताओ कि अकबर अली को लेकर मैं कहाँ जाऊं? आज रात को तुम और मैं अकबर अली को खामोशी से बोरी में पैक करेंगे, उसे जंजीर से आज़ाद करने से पहले उसका मुंह बंद करेंगे और हाथ पैर बांधेंगे। मुश्किल होगी उसे उठा के ऊपर लाने में, चुनाचा ये भी हो सकता है कि उसे ऊपर ला के बांधे, नीचे सिर्फ हाथ बांधे और मुंह बंद करें, या तुम उसे उठा के ला सकते हो। शायद ये कर सकता हूं मैं, दोनों काम कर सकता हूं। मगर उसके बाद
एक गाड़ी तुम्हें पीछे मिलेगी, उसमें अकबर अली को डाला जाएगा, उसके साथ मैं बैठूंगा और तुम गाड़ी चलाओगे। कहाँ जाएंगे हम? ये तुम मुझ पे छोड़ दो, एक जगह है मेरे पास भी, लेकिन वहां भी तुम 2-4 दिन रहोगे। थानेदार पूरी तैयारी के साथ आएगा, खाना तलाशी के वारंट लेकर। मैं उसे तय खाने की सैर करा दूंगा, वहां का नक्शा बदल देने की जिम्मेदारी मेरी। एक हिस्सा मेरी लाइब्रेरी और स्टडी बन जाएगा, दूसरे में अजनास भर दी जाएंगी। वहां चूहे दौड़ रहे होंगे, ना मुद्दई ना शहादत, इल्जाम न मेरी तरफ से न मुझ पर। मेहमान कहाँ गया? जहां से आया था। कहाँ से आया था? कराची से, लंदन से। जो मैं कहूंगा उसे चैलेंज करते हो तो जाओ तलाशी ले लो। रेशम के हक में गवाही मेरी। बाप की मौत के बाद से वो हवेली में है, मेरी हिफाजत में। मेरा मेहमान कभी उसके घर में नहीं रहा। वहां कौन मेहमान था उसके बाप को पता होगा। रेशम से जो पूछना है मेरे सामने पूछ लो, वो मेरी और मेरी माँ की जिम्मेदारी है। ये सब कर लोगे तुम? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे को तैसा भी होगा। थानेदार को किसने बुलाया ये जानना मेरे लिए जरूरी नहीं, उसका शक रफा हो गया तो वो दफा हो जाएगा। और हवेली में से किसी ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया फिर? अब किस में इतनी हिम्मत है? मैं कल सबको दोबारा से खबरदार कर दूंगा, लेकिन थानेदार ने कुछ ना किया और मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लिया तो फिर जाहिर है कुछ भी नहीं होगा। 2-4 दिन में तुम वापस आ जाओगे और कैदी फिर कैद खाना आबाद करेगा, वरना 2-4 दिन के बाद तुम लोगों को वहां से भी शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी ज्यादा महफूज मकाम पर। चलो फिलहाल इतना काफी है, आगे की बात में सोचेंगे। यानी तुम रेडी हो? अब रात के खाने के बाद हम और तुम सो जाएंगे। एक मुहाफिज तुम्हारे दरवाजे पर पहरा देगा, दूसरा मेरी हिफाजत पर मामूर होगा और उन दोनों की वफादारी शुबे से बालातर है। वो इंतहाई बुज़दिल हैं और मैं उन्हें बता दूंगा कि उनके बीवी बच्चे सुबह नहीं मिलेंगे रात को अगर उन्होंने एक लम्हे की भी कोताही की, और उनकी लाशें भी वहीं लटकी होंगी जहां एक नमक हराम की लटकाई गई थी आज। मेरा बंदोबस्त पक्का है, बस अब आध घंटे के बाद हम खाने की मेज पर इकट्ठे होंगे। वो उठ खड़ा हुआ। जाहिर है अनवर की बातों ने मेरे सुकून को तहे उबाला कर दिया था और वहशतनाक ख्यालों के एक सांप के बतन से खौफ और अंदेशों के 100 सपोलिए जन्म ले रहे थे। मैं बेचैनी से कमरे के अंदर बागड़ बिल्ले की तरह टहलता रहा, यहाँ तक कि एक मुलाजिम ने दरवाजे के पास आकर कहा, खाना लग गया है सर। तो मैं उछल पड़ा। खाने की मेज पर हस्ब तवक्को हम 3 ही अफराद थे, मैं, अनवर और रेशम। मुझे बताया गया कि अनवर के माँ बाप और भाभी ने खाना अपने अपने कमरों में खा लिया है। रेशम भी चुप और सहमी हुई सी थी। सिर्फ मैं और अनवर माहौल को नॉर्मल रखने की नाकाम कोशिश करते रहे और फजूल बातें करके हंसते भी रहे। उसके बाद रेशम तो उठ गई। हमने उसे भी कॉफ़ी के लिए पूछा, मगर उसने कह दिया कि वो कॉफ़ी नहीं पी सकती। मैं अनवर के साथ उसके बेडरूम में चला गया। ये कमरा फिर से वैसा ही बना दिया गया है जैसा साल भर पहले था। कुछ चीज़ें नहीं हैं, मसलन ये सोफ़ा। मैंने कहा, अनवर मुझे सुबह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये खेल इतना ख़तरनाक हो जाएगा। सियासत यही होती है दोस्त, तुम तो पाकिस्तान के निस्फ सदी की तारीख के चश्मदीद गवाह हो। हाँ, मगर तमाशा देखना और तमाशा बनना या तमाशा करना सब अलग अलग बातें हैं। टेक इट इजी, नो रिस्क नो गेम। किस्मत पर भरोसा रखो, गैब का इल्म किसी को भी नहीं हो सकता, चुनाचा हाल से निमटो। तुम तो वैसे भी खतरात से निमटने के चैंपियन बन चुके हो। हाँ, मगर अपने इरादे से नहीं, दूसरों की मर्जी से। खुद मुझसे पूछो तो मुझे सिर्फ एक पुरसुकून जिंदगी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जो तकदीर में होगा कोशिश से जरूर मिल जाएगा। रात 10 बजे जब मैं सोने के लिए निकला तो हवेली पर हू का आलमतारी था। यहाँ लोग नमाज इशा के बाद खाना खा के सो जाने के आदी थे। गांव की तरफ से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। बहुत दूर गीदड़ चिल्ला रहे थे। मुझे ये एक आसेब ज़दा रात लगी। न जाने उसकी सहर होने तक और क्या होगा जो मेरे गुमान में नहीं। मालूम नहीं क्या वक्त हुआ था जब किसी ने मेरे दरवाजे पर उंगली से दस्तक दी।
खौफ और वसवसों ने मुझे इस तरह अपने शिकंजे में लिया हुआ था कि मुझे ये खफीफ सी आवाज़ भी गोलियों के फायर जैसी लगी और मैं एकदम उठ बैठा। मुझे अपनी बुज़दिली पर शर्म भी आई। आखिर क्या हो गया है मुझे? दरवाजे पर एक मुहाफिज गन लिए मेरी हिफाजत पर मामूर है, फिर ये दहशत कैसी? और अंदर से खौफ की बाज गश्त ने कहा कि क्या वही मुहाफिज तुम्हें निशाना नहीं बना सकता? मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे के करीब जाके पूछा, कौन है? यार मैं हूं, खोलो दरवाज़ा। अनवर अली की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला लेकिन लाइट नहीं जलाई। मैं जाग ही रहा था। वक्त क्या हुआ है? 12:30। कम ऑन, हमें 2 घंटों में वापस भी आना है। तुम तैयार होना। तैयारी क्या करनी थी मुझे? मैं उसके पीछे चल पड़ा। गार्ड उस वक्त भी किसी बुत की तरह साकित खड़ा था। हम बरामदे के आखिर तक दबे पाँव गए। फिर उसने कोने में नस्ब दरवाजे को खोला और मैंने खुद को उस मुरब्बा अहाते के बाहर देखा जिसमें सामने मेहमान खाना था। दाएं बाएं फैमिली की रिहाइश गाह फैली हुई थी और पीछे का हिस्सा नौकरों के लिए और किचन और स्टोर वगैरह पर मुश्तमिल था। हम पिछली तरफ के कमरों की दीवार के साथ चलते हुए आखिरी कोने तक पहुंचे। मेरे बाएं हाथ पर एक बाग के सायादार दरख्त और सब्जियों के पौधे थे। आखिरी किनारे पर एक और दरवाज़ा आ गया। अनवर ने उसका कुफल खोला। वो शायद जंगालूद था। सामने सड़क पर 3 गाड़ियां खड़ी नजर आईं। उनमें आखिरी हाइलैक्स वैगन थी। उसके आगे 2 कारें खड़ी थीं, एक स्याह और एक सफ़ेद नए मॉडल की कोरोला। अनवर की आवाज़ ने मुझे चौंकाया। यार चलो, क्या देख रहे हो? ज़रा संभल के। कोई जवाब दिए बगैर मैं उसके पीछे चल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी का दायरा अनवर के कदमों तक महदूद था। उन रास्तों का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया था क्योंकि पहले मैं किसी और तरफ से नीचे गया था और ऊपर भी वहीं से चढ़ा था। चंद कदम चल के अनवर ने एक बार फिर एक दरवाज़ा खोला और हम एक स्टोर से गुजरे। फिर वो तहखाने में आ गया जिसमें मुझे डाला गया था। अनवर ने एक स्विच दबाया, फिर दूसरा। लाइट नहीं है यहाँ, पहले थी, अब नहीं है, वो तो दूसरी तरफ है। रास्ता तुम बना चुके थे। उसने नीचे झुक के आर्जी तौर पर फिक्स किए जाने वाले तख्ते को लात मार के दूसरी तरफ गिराया। अकबर अली की पुरवहशत आवाज सुनाई दी, कौन है? फिर उसने लाइट जला दी। तुम? अनवर अली ने कहा। हाँ छोटे भाई। मैंने सोचा देख लूं तुम्हें इस बेडरूम में कोई तकलीफ तो नहीं है। इसे बेडरूम कहते हो तुम? वो चिल्लाने लगा। तुम क्या कहते थे? अनवर ने कहा। मेरी आखिरी आराम का। तुमने तो कभी नहीं देखा खुदा के कि बड़ा भाई किस हाल में है, मगर देखो मुझे फिक्र थी तुम्हारे आराम की। आधी रात को उठ के पूछने आया हूं। अकबर खौफजदा हो गया। तुम्हारा इरादा कुछ और है, तुम मुझे मारने आए हो? अनवर ने रिवॉल्वर निकाला। बहुत ज़हीन हो तुम यार। सच बात यह है कि तुम्हारी तकलीफ का जितना ख्याल था मुझे, उससे ज्यादा अपनी तकलीफ का था। तुम्हें जिंदा रखना और कैद में तुम्हारा ख्याल भी रखना ये बहुत मुश्किल था। कितनी जहनी अजियत होगी तुम्हारे लिए जिंदा रहने में। गुजरा हुआ वक्त तो खैर सबको याद आता है, मगर तुम्हें ज्यादा अफसोस होगा उस गलती का जो तुमसे अनजाने में हो गई। और तुमने सोचा होगा कि माँ की कस्मों पर तुम बिला वजह जज्बाती हुए। खत्म करते मेरा किस्सा तो माँ क्या करती? रोती धोती, तुम्हें गालियां कोसने देती, मगर फिर सब्र करती। सब्र के सिवा चारा क्या होता उसके पास? वो तुम्हें कानून के हवाले भी ना कर पाती, क्योंकि फिर तुम इकलौते हो जाते। 1 साल बाद वो एक दिन बरसी करती मेरी और उस दिन फिर से रोती, मगर उसके बाद फिर खामोश हो जाती। न तुम्हारे लिए खतरा होता, न उसके लिए दुख। अब देखो कि वो फिर अजाब से गुजर रही है। एक्शन रिप्ले एपिसोड 2, एक नया अजाब। अकबर हकलाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? आदमी अपनी और दूसरों की गलती से ही सीखता है मेरे भाई। मैं क्यों ये रोक पालूं, क्यों रिस्क लूं? मैं हूं जरा गैर जज्बाती बंदा। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हो सकता। माँ के अजाब को तूल देने से बेहतर है कि खत्म किया जाए। माँ और अब्बा जी कुछ दिन रोएंगे, फिर भूल जाएंगे। तुम्हारी बेवा
وہ ماں بننے والی ہے، غالباً دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتی۔ وہ باہر، بلاخر مجھے ہی چادر ڈالنی پڑے گی اس پر۔ یہ ہماری روایت ہے اور خاندانی رسم، میری ذمہ داری۔ وہ بھی جانتی ہے، چنانچہ 1-2 سال میں تمہاری جگہ مجھے دینے پر راضی ہو جائے گی۔ تم بچے کی فکر مت کرنا، وہ میرا بھی تو بھتیجا ہے، اپنی اولاد کی طرح پالوں گا میں اسے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو انور بھائی۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ اس نے نشانہ لے کر ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا۔ کلمہ پڑھ لو۔ اکبر کی کھکی بند گئی۔ انور، انور، تجھے اللہ رسول کا واسطہ، مجھ سے لکھوا لے سب اپنے نام۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ خوف سے اس کا پیشاب خطا ہو چکا تھا، وہ زمین پر گر گیا تھا اور بڑے عجیب طریقے سے رو رہا تھا۔ انور نے میری طرف دیکھا۔ یار، یہ ایک پریشانی کر دی ہے میں نے تمہارے لیے، میں نے برہمی سے کہا۔ آخر اس جان لیوا مذاق کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنے شفاق کیسے ہو گئے؟ وہ ہنسا۔ اکبر پتر، تیرا بڑا بھائی تیری جان لے سکتا ہے بھلا؟ خود سوچ، میں تو دیکھ رہا تھا کتنا دم خم ہے تجھ میں، لیکن تو بالکل ہی… چل اٹھ، تجھے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اکبر نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ کہاں چلنا ہے؟ بڑے گھر، وہاں زیادہ آرام سے رہے گا تو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، اکبر نے کہا۔ مارنا ہے تو یہی مار دو۔ چل یار، بہت وقت ضائع ہو گیا۔ انور نے میری طرف دیکھا۔ اکبر کے پیروں کا قفل کھولنے سے پہلے میں نے اس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے، پھر دونوں پیر۔ اس کے بعد میں نے زنجیر کھول دی۔ یار انور، کیا حرج ہے اگر ہم اسے اٹھانے کے بجائے چلا کے لے جائیں؟ یہ شور کرے گا، مگر منہ بند کیا جا سکتا ہے، یہ بہتر رہے گا۔ اکبر نے مزاحمت ضرور کی، مگر میں نے اس کے منہ میں تکیے کا غلاف ٹھونس دیا۔ پھر میں نے اسے پیچھے سے دھکیلا۔ چلو، اس نے پھر کہا۔ میں نہیں جاؤں گا، مگر میرے ایک دھکے سے آگے چل پڑا۔ اسے بار بار پیچھے سے دھکیلنا ایک مجبوری تھی۔ ہم اسی طرح اوپر آئے جیسے پہلے آئے تھے۔ انور نے اوپر والا دروازہ لاک کیا اور ہم اپنے قیدی کے ساتھ آخر میں کھڑی ہائلیکس ویگن کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ اکبر کو ہمارے وعدے کا اعتبار نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اسے حویلی سے باہر لے جا کر ماریں گے اور گاڑ دیں گے، مگر وہ چلتے رہنے پر مجبور تھا۔ میں نے خود اسے اٹھا کے وین میں ڈالا۔ انور اس کے ساتھ چڑھ گیا۔ اس نے اکبر کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دی اور ایک چابی مجھے دی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وین کو ریورس میں گیٹ سے باہر نکالا۔ انور مجھے ہدایات دیتا گیا۔ وین اجنبی راستوں پر دوڑتی گئی۔ ہم اب شہر کی طرف جا رہے تھے۔ جی ٹی روڈ تک کا فاصلہ ہم نے 10 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ پھر گاڑی نے لاہور کی سمت پکڑ لی۔ اکبر انتہائی بے بس تھا۔ وہ حلق سے آواز بھی نہیں نکال سکتا تھا، اور گاڑی میں بٹھانے کے بعد انور نے میری مدد سے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے، مگر پاؤں باندھ دیے تھے۔ چنانچہ وہ جلدی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ مارنے کا ایڈونچر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تھی، اور ایک سوال ٹھہر گیا تھا کہ آخر تم نے میرا انجام کیا طے کیا ہے؟ اور رحم کی اپیل تھی کہ مجھے بھی جینے دو، اور ایک عہد تھا کہ میں تمہاری شرائط پر جی لوں گا۔ لیکن یہ سب بہت بعد از وقت تھا، اور وقت بدل گیا تھا۔ صرف آدھے گھنٹے کے بعد انور علی کی ہدایات کے مطابق گاڑی لاہور کے مسافات میں ملتان روڈ کے ایک نو آباد علاقے کی کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ ارد گرد کے بیشتر مکانات میں صرف گیٹ لائٹس روشن تھی۔ یہاں بھی سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس نصب نہیں ہوئی تھی۔ سڑکوں کی حالت بھی ابتر تھی۔ نئی آبادیاں لاہور میں ہر طرف بن رہی تھیں، اور ترقیاتی کام کی رفتار بھی تعمیرات کے مطابق تھی۔ یہاں بھی مجھے بہت چھوٹے گھر دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ 10 مرلے کے مکان بھی کم تھے۔ زیادہ تر کوٹھیاں 1، 2 یا 4 کنال کی تھیں۔ 2 گھروں کے باہر گارڈ بھی سونے والوں کی حفاظت کے لیے جاگ رہے تھے۔ جس کوٹھی کے باہر گاڑی روکی گئی وہ میرے اندازے کے مطابق 1 کنال پر محیط تھی اور مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انور نے مجھے پیچھے سے ہاتھ میں ایک چابی تھمائی، اور میں گیٹ کو پورا کھول کے گاڑی کو اندر لے گیا۔ ہیڈ لائٹس کو آف کرنے سے پہلے میں نے ویران برآمدے کا جائزہ لیا، جس میں نہ جانے کب سے 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ برآمدے میں 2 دروازے کھلتے تھے۔
उनके सामने सूखी हुई घास और खुश्क पौधे थे। साफ जाहिर था कि इस घर को अरसे दराज से मकीन मैसर नहीं आए। मैंने बरामदे के स्विच बोर्ड का एक बटन दबाया तो ऊपर एक गोल ट्यूब रोशन हो गई। चाबियों में से एक ने दरवाजे का लॉक खोल दिया और मैंने हेडलाइट्स के धुंधले से उजाले में स्विच बोर्ड तलाश किया। लाइट जलाते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो ड्राइंग रूम था। अब मैंने कैदी को अंदर मुंतकिल करने में अनवर अली की मदद की और गाड़ी की लाइट्स ऑफ करके बाहर वाला गेट भी बंद कर दिया। अनवर अली ने भाई की आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोली और उसके मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा भी निकाल दिया। वो कुछ देर लंबी लंबी सांसें लेता रहा और बेबसी से कभी गिरदोपेश को और कभी हमारी सूरतों को देखता रहा। ये क्या जगह है? उसने बिलाखिर पूछा। अब तुम यहाँ रहोगे, अनवर अली ने उसे यूं मुत्तला किया जैसे ये अच्छी खबर है। तुम्हें तकलीफ कोई नहीं होगी यहाँ, मगर एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो तो जिंदा रह सकते हो। कभी फरार की मत सोचना और ना बाहर से मदद मांगने का ख्याल दिल में लाना, वरना मारे जाओगे। क्या मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकता? वो बेबसी से बोला। इसका इन्हिसार तुम्हारे रवैये पर है। हम 1 साल बाद फैसला करेंगे। 1 साल बाद? वो फरियादी लहजे में चिल्लाया। घर के लोगों को मैं समझा दूंगा। अगर वो तुम्हारी जिंदगी और सलामती चाहते हैं तो इस फैसले को भी उसी तरह खामोशी से कबूल कर लें जैसे उन्होंने मेरी असीरी को कबूल किया था। माँ से और अब्बा जी से या बीवी से तुम्हारी फोन पर बात करा दी जाएगी, मुनासिब वक्त पर। अगर किसी ने मेरे खिलाफ मुंह खोला तो वो तुम्हारे साथ दुश्मनी करेगा। मेरी पोजीशन उतनी ही महफूज है जितनी तुम्हारी थी। मुझे अब वापस चलना चाहिए। अब तुम इसके कैदी हो जो पहले तुम्हारा कैदी था। अनवर ने अंदर के ताले खोले। एक से दूसरे कमरे में जाते हुए अकबर अली के पीछे मैं चलता गया। ये 3 बेडरूम की कोठी थी जिसमें असबाब आराइश न होने के बराबर थे, लेकिन जरूरत के मुताबिक फर्नीचर हर कमरे में डाल दिया गया था। अरसा दराज से सफाई न होने के बायस गर्द की तय हर चीज पर नजर आती थी। ताहम एक नजर देखने से अंदाजा हो जाता था कि फर्नीचर बेशकीमत है। ऐसा लगता था जैसे ये किसी फैमिली की रिहाइश का नहीं थी, बल्कि मेहमान खाने या इशरत कदे के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इसकी तस्दीक बहुत सी चीजों से होती थी। हर एशरे में सिगरेट के टोटे भरे हुए थे। एक डिबिया से मुझे अंदाजा हो गया कि टोटे भी बेशकीमत सिगरेटों के होंगे। फिर मुझे एक टेबल पर शराब की आधी बोतल और 2 जाम नजर आए। दूसरे कमरे में बेड पर किसी खातून का लिबास पड़ा था और कालीन पर जूते जैसे फेंक दिए गए थे। अकबर को हमने एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया था जिसका वाहिद दरवाजा दूसरे बेडरूम में खुलता था। उसकी खिड़की में मजबूत ग्रिल थी और ये अकबी हिस्से की गैलरी में खुलती थी, मगर अंदर की जानिब। ये है तुम्हारा ठिकाना। जेल की एक क्लास भी ऐसी नहीं होती। जहां तुमने मुझे रखा था वो तो तुमने मुझे अजियत देने के लिए मुंतखब की थी। ये सिर्फ कैद है। मैं तुम्हें जहर भी नहीं दूंगा। अकबर दोनों हाथों से मुंह छुपा के रोने लगा। तुम बदला ले रहे हो, अनवर ने तलखी से कहा। जुर्म करने वाले को सजा हो तो उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। दरवाजे को मुकफ्फिल करने के बाद अनवर ने मेरे साथ किचन को देखा। मेरा ख्याल है इसमें सब कुछ होगा, न हो तो ले आना। कैदे तन्हाई तो मेरे लिए भी है, मैंने कहा। ये खेल का एक हिस्सा है। रेशम की और तुम्हारी सलामती इसी में है। मैं समझता हूँ कि ये 3-4 दिन की आजमाइश होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। टीवी है यहाँ, छत पर डिश लगा है। कल मैं किसी को सफाई के लिए भेज दूंगा। तुम्हारे किचन का मसला भी हल हो जाएगा। मौका मिला तो मैं भी चक्कर लगाऊंगा। मैं उसे रुखसत करने दरवाजे तक गया। देखो, तुम एक बहुत खतरनाक खेल खेल चुके हो। तुम इस बार हार अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे अंदाजा है, लेकिन दोस्त ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। ये इक़्तिदार कायम करने का मरहला है। इसके लिए मुझे रिवायती जागीरदार का रोल भी करना पड़ रहा है। मैं संगदिल और सफाक न बनूं तो मेरी चलेगी नहीं। मेरे लिए इन रिश्तों को बेतौकीर करना भी एक कठिन आजमाइश है। माँ के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। बाप की गलती को माफ न करना मेरे लिए आसान नहीं। और तुम क्या समझते हो, इस छोटे भाई को इसी तरह अपनी राह से हटा सकता हूँ जैसे कि औरंगजेब ने हटाया था, और बाप को शाहजहां की तरह कैद कर सकता हूँ? उससे सल्तनत अजीज होगी। उस जागीर की मोहब्बत मेरे दिल में खून के रिश्तों से ज्यादा हरगिज नहीं। फिर क्यों कर रहे हो ये सब? उसने कहा।
एक अपना बाइज्जत जिंदगी का हक हासिल करने के लिए, और दूसरा इनको एहसास दिलाने के लिए कि दुनिया में ही मकाफात अमल मौजूद है। ये हो सकता है कि आप दूसरों के लिए कब्र खोदें तो खुद आप उसमें दफन कर दिए जाएं। अच्छा, खुदा हाफिज। वो गाड़ी चलाकर बाहर चला गया और मैं गेट बंद करके उस कमरे में आ गया जो अब मेरा बेडरूम था। साथ वाले कमरे में अकबर था और उसके कमरे का दरवाज़ा मेरे कमरे में खुलता था। चुनांचे ये नामुमकिन था कि मुझे पता न चले और वो ताला खोल के या दरवाज़ा तोड़ के फरार हो जाए। मेरे कमरे में भी बेड पर गर्द आलूद चादर थी। मैंने उसे झाड़ा तो गर्द उड़ी। तकिया झाड़ के मैं लेट गया। अभी नींद आने का कोई इम्कान नहीं था। उस कमरे में फर्नीचर न होने के बराबर था। दीवार के साथ एक सोफा था, उसके सामने एक मेज और बस। नीचे कालीन भी सफाई मांगता था, लेकिन ना मैं ये काम कर सकता था ना ही उसकी फौरी ज़रूरत महसूस करता था। छत को घूरते हुए मैं गर्दिश हालात पर गौर करता रहा। वक्त जैसे समंदर की लहर था, हर लहर के साथ रेत के घरों दे बहा ले जाता था। नौरीन से बिछड़ना एक हादसा था, रेशम के घर में आंख खोलना हादसा था। रहीम बख्श की मौत, रेशम के साथ मेरी असीरी और फिर रिहाई, सब जैसे ड्रामाई मनाजिर थे। वाकयात का टेम्पो इस कदर फास्ट था कि सब कुछ गैर हकीकी सा लगता था। दीवार पर लगे क्लॉक में वक्त थम गया था। उसका सेल न जाने कब से बदला नहीं गया था। अनवर अली ने यह नहीं बताया था कि कोठी किसकी है और किस हद तक महफूज है। क्या और किसी को इस खुफिया ठिकाने का कोई इल्म नहीं? ये मैंने भी नहीं पूछा था। शायद अकबर अपने कमरे में इसी तरह खामोश लेटा अपने मुस्तकबिल या माजी के बारे में सोच रहा था। अंदर की खामोशी यही जाहिर करती थी। नींद शायद उसके इख्तियार में भी नहीं थी। न जाने कितनी देर के बाद नींद ने मुझ पर गलबा पाया और मेरे लिए वो सुकून और आराम जरूरी भी था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं 6 घंटे के बाद जागा हूँ। डॉक्टर ने मुझे जख्म के इलाज के लिए जो दवाएं दी थी वो मैं साथ लाया था। बाहर निकल के मैंने किचन की एक टूटी को चेक किया। उसमें पानी आ रहा था, मगर ऊपर के टैंक से एक नल लॉन में था जो डायरेक्ट लाइन से लगा हुआ था। उसके पानी से दवा खा के मैंने मुंह धोया और फिर किचन का रुख किया। सारे कैबिनेट खोलकर देखने से मुझे जरूरत की हर चीज नजर आ गई। वहां एक माचिस भी थी। उसे गैस का चूल्हा रोशन किया। मैंने बाहर निकल के देखा तो लोग जिंदगी के मामूलात में मसरूफ नजर आए। 2 घर ज़ेरे तामीर थे और वहां मजदूर काम कर रहे थे। 100 कदम के फासले पर एक तनूर और एक झुग्गी होटल भी दिखाई दिया। सामने से गुजरने वाले मजदूर ने मुझे बताया कि आगे उल्टे हाथ पर चंद दुकानें भी हैं। अकबर की तरफ से मुझे कोई खदशा नहीं था। मैं बाहर का गेट खोलकर वहां आ गया। वहां एक जनरल स्टोर भी था और एक छोटी सी दुकान थी जहां से मैं नाश्ते का सामान लेकर वापस आ गया। वापस आकर मैंने दरवाजा खोला और नाश्ता अकबर के कमरे में रख दिया। मुझे भूख नहीं, उसने नफरत और हिकारत से कहा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन आखिर तुम कब तक नहीं खाओगे? मैंने कहा। जवाब में कुछ कहने के बजाय उसने एकदम से मुझ पर हमला कर दिया। मुझे इसका अंदेशा जरूर था, लेकिन मैं उसके लिए फौरी तौर पर तैयार नहीं था। वो मेरे ऊपर गिरा। दरमियान की मेज उलट गई। मेरे हाथ से चाय का मग छूट गया और कुर्सी समेत पीछे गिरा तो वो मेरे ऊपर आया। उसके बाद मेरे जिस्म का रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और फिर मैंने उसे उठने का मौका नहीं दिया। उसने कोशिश की थी कि मेरे जेब से रिवॉल्वर निकाल ले। वो अनवर अली के मुकाबले में बहुत तनुमान था और उसके लिए यह बका या फनाह की जंग थी। जो बिल्ली भी लड़ती है तो शेरनी बन जाती है। एक झटके से मैंने सर उठाया और उसकी पेशानी पर टक्कर मारी। फिर मेरी कोहनी ने उसकी पसली पर वार किया और मैंने उसे उलट दिया। यह मुश्किल से 5 सेकंड का अमल था जिसने उसे मेरी पोजीशन में पहुंचा दिया। नीचे आ जाने के बाद उसने दोनों हाथों से मेरा मुंह नोचा और टांग उठा के घुटना मेरी कमर में मारा। गालियों के साथ उसके मुंह से थूक निकला जो मेरे मुंह पर पड़ा। मेरा जख्म खोरदा हाथ उस वक्त मुतासिर हुआ था जब वो मेरे ऊपर गिरा था। उस जख्म से खून उबल पड़ा, लेकिन अगले 5 सेकंड में मेरे हाथों ने उसका गला दबोच के उसके सर को बार बार फर्श पर मारा। नीचे कालीन होने की वजह से उसका सर फटा नहीं, मगर चोट ने अंदर तक उसका दिमाग हिला दिया। जब वो साकित हो गया तो मैं उठा। दरवाजे को मुकफ्फिल करके मैं अपने बेडरूम से मुल्हिक वॉशरूम में गया और कमीज उतार के जख्म को धोया। फिर उसी कमीज को फाड़ के एक हाथ से जख्म पर पट्टी बांधी।
उसे खींचने के लिए मैंने एक हाथ के साथ दांतों का इस्तेमाल किया। कमीज के नीचे मेरा बनियान भी खून आलूद हो गया था। मैंने उसे भी उतार फेंका। मैं उस कमरे में आ गया जिसके बेड पर कोई जनाना लिबास पड़ा था। मुझे ख्याल आया कि शायद किसी कमरे की अलमारी में कोई मर्दाना कपड़ों का जोड़ा भी मिल जाए। मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ। उस कमरे की वार्डरोब में एक धुला हुआ इस्त्रीशुदा शलवार कमीज का जोड़ा मौजूद था। बाद में मुझे उसके बाथरूम में भी एक जोड़ा मिला जो इस्तेमाल शुदा था। फिर मैं वापस गया और मैंने फर्श पर पड़े हुए अकबर अली को उल्टा करके उसके हाथ बांध दिए। उसके लिए मैंने वही पट्टी इस्तेमाल की जो उसकी आंखों पर से खोली गई थी। ये ज्यादा मजबूत नहीं थी, उसे वो तोड़ भी सकता था। फिर मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैंने उसकी वो शलवार उतार दी जो पेशाब से गीली हो गई थी मगर अब सूख चुकी थी। उसका औजारबंद निकाल कर मैंने उसके हाथों को मजबूती से बांधा और उसे सीधा कर दिया। मुझे उस पर गुस्सा था। मैं उसे सजा भी देना चाहता था, चुनाचा मैंने उसकी एक कमीज भी खींच कर उतार दी। अब वो फर्श पर नंगा पड़ा था। उसके कपड़े में अपने साथ ले गया और कमरे को फिर से मुकफ्फिल कर दिया। नंगा आदमी अपनी सारी खुद एतमादी खो देता है। थाने में पुलिस यही करती है। हर मुजरिम का इस्तकबाल उसके कपड़े उतार के करती है, बाकी सजा उसके बाद शुरू होती है। एहसास जिल्लत हर इंसान को बेबस और कमजोर बना देता है, ख्वाह वो मुजरिम ही क्यों ना हो। किचन में जाके मैंने अपने लिए दोबारा चाय बनाई। खाने के लिए मैं डबल रोटी और मक्खन ले आया था। दोबारा कमरे में जाने से पहले मैंने ये एहतियात बरती कि दरवाज़ा खोला तो अकबर के हमले के लिए तैयार होके, मगर वो उसी तरह फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने कुर्सी को उससे कुछ फासले पर रखा और चाय पीता रहा। आध घंटे के बाद वो पूरी तरह होश में आया और उसने खुद को बेलिबास देखा। फिर वो उठा और घुटनों में सर देकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम चाहो तो फिर कोशिश कर सकते हो, तुम्हारा रास्ता खुला है। क्या अब मुझे ऐसे ही रहना होगा? मैंने इकरार में सर हिलाया। मजबूरी है, लेकिन तुम इस हालत में भी फरार होना चाहो तो जा सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन गोली मार दोगे मुझे। मेरा वादा है कि रिवॉल्वर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने रिवॉल्वर निकाल के मेज पर रख दिया। खुदा के लिए मुझे मेरे कपड़े दे दो। यहाँ क्या जरूरत है तुम्हें कपड़ों की? अब मैं बीच का दरवाजा भी खुला रखूंगा। बस एक बात याद रखना, सिर्फ एक हाथ से भी मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता हूं। मैंने कोई चैंपियनशिप तो नहीं जीती, मार्शल आर्ट में कोई सनद भी नहीं ली, लेकिन तुम जैसे चार मेरे करीब नहीं आ सकते। मेरी घड़ी में अब 10 बज रहे थे। बाहर से किसी कार का हॉर्न सुनाई दिया तो मैंने बरामदे तक जाकर देखा। वहां गाड़ी कोई नहीं थी, मगर एक औरत दरवाजा खोलकर अंदर आ रही थी। शायद कोई गाड़ी उसे ड्रॉप करके चली गई थी। वो 25-30 साल की सेहतमंद कदरे फरबा जिस्म की देहाती औरत थी। उसके सांवले रंग में एक अजीब सी शादाबी और कशिश थी, मगर उसका गोल चेहरा जाज़िब नजर था और उससे भी ज्यादा उसका जिस्म जो चुस्त लिबास से उबल कर बाहर आने को तैयार था। उसने क्रीम कलर की रेशमी कमीज और धारीदार सूती शलवार पहन रखी थी। दुपट्टा उसके शाने पर झूल रहा था और ब्राउन तराशीदा बाल बिखरने के लिए आजाद थे। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो मुझे देख के मुस्कुराई। मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा गया है, मेरा नाम सलोनी है, उसने शाइस्ता अंग्रेजी में कहा। हैरत पर काबू पाके मैंने सर हिलाया। ये भी बता दो कि किसने भेजा है तुम्हें, और प्लीज उर्दू में बात करो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। उसका चेहरा बुझ गया। चौधरी अनवर साहब ने। वो मेरे सामने आकर ठहर गई। उसके हाथ में एक बैग था और एक सूटकेस घसीट कर ला रही थी। और तुम्हें यहाँ छोड़ के कौन गया है? उन्हीं का बंदा था, मैं उसे नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता। क्या आप मुझे यहीं खड़ा रखेंगे? उसकी बेबाकी और शौक मेकअप से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो यहाँ सिर्फ काम ही नहीं करेगी, मेरी दिलबस्तिगी का सामान भी फराहम करेगी। ये अनवर ने मेरी तन्हाई दूर करने का नुस्खा तलाश किया था। मैंने उसे रास्ता दे दिया। किचन मैंने साफ कर लिया है, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आटा है और चावल हैं। हांडी पकाने के लिए क्या करूं? उसने कुछ देर के बाद आगे सवाल किया। मैंने कहा, वो मैं ला देता हूं, लेकिन ख्याल रखना खाने वाले 3 हैं। तीसरा कौन है? उसने हैरानी से पूछा। वो फिर इंग्लिश बोल गई।
ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं, खामोशी से वो करो जो मैं कहूँ। मैंने बरहमी से कहा, खाना पका लो तो मेरा कमरा साफ कर दो, बाकी घर को छोड़ो। तीसरा कमरा तुम्हारा है, तुम खुद को कमरे तक महदूद रखोगी जब तक मैं तुम्हें आवाज देकर ना बुलाऊं। उसने दबी हुई शोखी बरकरार रखी। यस सर। खुदा न खास्ता आपकी चीख सुनाई दे फिर भी, या धमाका हो। मैंने अपनी हंसी को रोक लिया और खामोशी से बाहर निकल गया। करीब से मार्केट से मुझे सब्जी गोश्त वगैरह मिल गया। दोपहर के खाने तक मैं टीवी देखता रहा। उस पर दुनिया भर के चैनल आ रहे थे। सलोनी जब कमरा साफ कर रही थी तो अकबर ने दरवाजा बजाना शुरू किया। सलोनी ने मेरी तरफ देखा, मगर मेरा सपाट चेहरा देखकर खामोश हो गई। अकबर ने कई बार दरवाजा बजाया, मगर मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं समझ रहा था कि अकड़ फूं भी खाली पेट मुमकिन नहीं। उसने नाश्ता जाया किया था। अब जरूरी था कि उसे फाके का मजा चखाया जाए। सलोनी के जाने के बाद मैंने बीच का दरवाजा खोला तो पहले उसे खबरदार कर दिया, दरवाजे से 10 कदम दूर चले जाओ वरना भुगतोगे। फिर जब मैंने दरवाजा खोला तो वो 10 कदम दूर जिल्लत की तस्वीर बना खड़ा रहा। देखो, मैं अपनी गलती मानता हूं। गलती, गुनाह और जुर्म में फर्क होता है। मैंने उसकी बात काट दी। जो कुछ तुमने अपने बड़े भाई के साथ किया वो तीनों में शुमार होता है। जो भी मेरे साथ किया वो जुर्म था। जेल में कोई कैदी ऐसी बगावत करे तो उसे अंदर ही जेलर सजा देता है। और वो सब जो तुम लोग कर रहे हो, वो चिल्लाया, उसमें भी पहल तुमने की थी, लेकिन उस वक्त तुमने सजा और जजा के फलसफे को काबिल गौर नहीं समझा था। अब यहाँ फुर्सत में हिसाब करना कि तुम्हारे जबरो कहर का निशाना कितने लोग और किस किस तरह बने थे। रेशम, उसका बाप और मैं तुम्हारी हवस और तुम्हारे जुल्म का एक साथ शिकार हुए। अपनी राय और अपने गुलामों के साथ तुम क्या करते रहे? कितनों की इज्जतें लूटी, कितनों का खून किया। याद करोगे तो खुद ही कायल हो जाओगी कि तुम्हारे अजाब को कितना भी तूल दिया जाए, तुम्हारी सजा ना काफी है। वो बिस्तर पर गिर गया, थाड़े मार मार के रोने लगा। मैंने दरवाजे को फिर से मुकफ्फिल किया और बाहर आ गया। मैं अकबर के साथ जो कुछ भी कर रहा था वो एक सफाक मशगला था। उससे मुझे कोई तस्कीन हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन उसके साथ रहम दिली और फयाजी का मुजाहरा भी मैं नहीं कर सकता था। सलोनी ने सूटकेस से साफ चादरें निकालकर बेड पर बिछा दी थी और झाड़ू वगैरह सारे कमरों में कर दिया था। उस जगह की सफाई एक हद तक की मुमकिन थी, उसे चमकाया नहीं जा सकता था। उसने बाथरूम को भी काबिल इस्तेमाल बना दिया था। उसने मेरी हिदायत के मुताबिक पानी का ऊपर वाला टैंक खाली किया और मोटर चला के उसमें ताज़ा पानी भरा। किचन पर उसने सबसे ज्यादा मेहनत की। नए बर्तन निकाले और उन्हें साफ करके रखा। कुछ असबाब ज़रूरत, मसलन चाय कॉफ़ी वगैरह जो अनवर अली ने मेरे इस्तेमाल के लिए भेजे थे, कैबिनेट में भर दिए। शाम को उसने एक बार फिर मुझे कॉफ़ी बना कर दी। उसे कॉफ़ी बनाना आती थी। शाम को मैंने कॉफ़ी लेकर पूछा, तुम हवेली में काम करती हो? यस सर, सिर्फ मेहमान खाने में। वो मुस्कुराई। मेहमानों की हर खिदमत बजा लाती थी। इसका क्या मतलब है सलोनी? पहले क्या कभी इस घर में आई हो? जानती हो ये किसका घर है? नहीं सर। बड़े चौधरी साहब मुझ पर बहुत मेहरबान थे। जब वो शिकार या सैर व तफरीह पर जाते थे तो उनके दोस्तों के आराम और क़याम व क़याम का बंदोबस्त करना मेरी जिम्मेदारी होती थी। हर किस्म की ज़रूरत मैं पूरी करती थी, दिन की हो या रात की। मेरे पास सबकी तफरीह का बंदोबस्त था। मुझे वो अपनी हाउस कीपर के तौर पर मुतारिफ कराते थे। मैंने कहा, ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया। फिर हुक्म करें जनाब, आप एल्बम में से इंतखाब भी कर सकते हैं। ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। बकवास बंद करो, मैंने हैरानी और बरहमी से कहा। तुम पेशा भी कराती हो लड़कियों से? नहीं सर, पेशा तो वो खुद करती हैं, मैं तो वसीला हूँ। बड़े चौधरी साहब तो कहते थे, सलोनी, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वो तुम्हारे कितने गर्विदा थे और क्यों। उसने एक ठंडी सांस ली। चौधरी अकबर साहब ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। अब चौधरी अनवर साहब ने फिर से याद किया तो मुझे यकीन नहीं आया। आप भी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं सर, मैं हर खिदमत बचा ला सकती हूँ। मैंने पूछा, यहाँ तुम्हें कौन छोड़ के गया था? मैं टैक्सी में आई थी। रंगीला मेरा मजनू है, 8 साल से। दिन रात में उसे जहाँ बुलाऊं सर के बल आता है। बड़ा जीदार बनता है और भरोसे के काबिल भी।
उसे टैक्सी मैंने ही लेकर दी थी। अब सोचती हूँ उससे शादी ही कर लूं। क्या तुम्हें भी उसकी जरूरत है? मैंने तल्खी से पूछा। वैसे तो नहीं है सर, लेकिन वो चाहता है। शादी कर लोगी तो उसका घर संभालोगी, उसके बच्चे पालोगी, और ये तुम जैसी औरत के लिए नामुमकिन होगा। मुश्किल तो है सर, लेकिन अब इसकी जरूरत मुझे भी महसूस होती है, वरना वक्त निकल जाएगा हाथ से। और वो कौन सा मुझे घर में कैद करके रखेगा? वो जानता है ये नहीं हो सकता। आप बताएं रात के खाने में क्या खाएंगे? मैं सब बना सकती हूँ। दिल ही दिल में नफरत के साथ मैंने उस औरत के साथ हमदर्दी में महसूस की जिसकी जिंदगी अपने से ज्यादा दूसरों के लिए वक्फ थी। वो ज़हीन थी, होशियार थी, पुरएतमाद भी थी। मुझे उसकी जिंदगी की कहानी में दिलचस्पी पैदा होने लगी थी। शाम के बाद रात तक मैं सख्त बेजारी में फिर टीवी के चैनल बदलता रहा। मुझे अनवर अली का इंतजार था। एक कमरे में फोन था, मगर वो न जाने कब से डेड पड़ा था। रात के खाने से पहले मैंने एक बार फिर अपने कैदी का जायजा लिया। वो बेड पर आड़ा और बेसुध पड़ा था और कराह रहा था। उसने सर उठा के मुझे देखा और बोला, देखो, मैं बहुत जालिम और कमीना शख्स था, मगर तुम तो नहीं हो। मुझे मारना है तो मेरा गला घोंट दो या गोली मार दो। उस वक्त अचानक मुझे खुद से शर्म आई। आखिर मैं ये क्या कर रहा हूं और क्यों? इसमें ना कोई तस्कीन का पहलू है, ना ही खुशी का। फिर इसका क्या फायदा? चंद रोज बाद मुझे बहरहाल चले जाना है। खुद अनवर अली का छोटे भाई के साथ ऐसा सलूक वक्ती ड्रामा है, इंतकाम लेना है उसे। मुझे उस हवेली की सियासत से क्या लेना देना? मैं यहाँ ठहरूं तो खुद अपने लिए मसाइल और मुश्किलात की दलदल पैदा करूंगा। मुझे बहरहाल नौरीन की तलाश में जाना है। मैंने उसके कपड़े उसे वापस कर दिए, और जब वो पहन चुका तो एक टेबल लैंप के तार से उसके हाथ बांध दिए। फिर दरवाजे में कुफ लगा के मैं किचन में खाना लाने गया। मैं आपका खाना आपके कमरे में लाती हूँ, वहां मेज भी है, सलोनी ने कहा। वो ट्रे में खाना लगा रही थी। अभी मुझे नहीं खाना, मैंने दुरुस्ती से कहा। ट्रे मुझे दे दो। अकबर को खाना खिला के मैंने दोबारा उसके हाथ बांधे। अपनी दानिश में मुतमईन हो जाने के बाद मैंने दरवाजे को बाहर से मुकफ्फिल कर दिया। इससे मेरा निदामत और अजियत का एहसास कुछ कम हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि सलोनी बहुत अच्छी कुक थी। उस औरत का किरदार कैसा भी था, लेकिन उसमें एक लगन थी। खाने के वक्त मैंने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। यहाँ बैठो, मुझे अपने बारे में बताओ, मैंने कहा। उसका चेहरा खिल उठा। अपने बारे में खुद मैं क्या बताऊं? मेरी जिंदगी एक खुली किताब है जो सब पढ़ते रहे हैं। लगता है तुमने कुछ तालीम हासिल की है, मैंने पूछा। मामूली सी सर, 10वीं का इम्तिहान जरूर दिया था। क्या मिलता पढ़ाई करके? सर, हम कमी कमीन लोग कौन सी इज्जत पा सकते हैं? मेरा बाप एक मिरासी था, ढोल बजाता था तकरीबात में। माँ वही काम करती थी जो मैं कर रही हूँ। आप शहरी बंदे हैं, इस गुलामी का मतलब नहीं समझते जो पैदाइशी तौर पर हमारा नसीब हो जाती है। हमारे यहाँ माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू का कोई तस्वर नहीं होता, वो सब हाकिमों की मलकियत होती है। मैंने कहा, क्या तुमने इसको कबूल नहीं किया था? वो मुस्कुराई। ये कैसे मुमकिन था सर? मैंने वही किया जो मेरी माँ करती थी। मुझे करना पड़ा। मुझे हमदर्दी है तुमसे। वो कुछ हैरान हुई। क्यों सर? आखिरी बार ये बात मुझसे 8 साल पहले एक स्कूल मास्टर ने कही थी। वो इसी गांव के प्राइमरी स्कूल में था। मैंने उसे गौर से देखा। मोहब्बत करता था तुमसे? उसने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया। ये लफ्ज मैंने पहली बार उसी की जुबान से सुना था। फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं कर ली? वो तल्खी से मुस्कुराई। क्या ये मेरे इख्तियार में था? इसका मतलब है कि उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बेवफाई की थी तुमसे? ऐसी बात नहीं है सर। आप क्यों इस भूली बिसरी याद को आवाज देने पर मजबूर कर रहे हैं? क्या मेरी कहानी लिखेंगे आप? कहानियां मैं सिर्फ पढ़ता हूं। तुम ना सुनाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती कोई नहीं। उसने उदास आंखों से मुझे देखा। जब मैं 8वीं जमात में थी तो मुझे उठा लिया गया था। स्कूल से नहीं, स्कूल से वापसी के रास्ते में। अपने चौधरी असगर अली साहब के शौक उस वक्त भी जवान थे। सेहत कुछ बेहतर थी। अपने बारे में क्या कहूँ? गांव के नौजवान नजरें बिछाए रास्ते देखते थे और मैं उनके दिलों को पत्थर की तरह ठोकर मारकर गुजर जाती थी। किसी ने हिम्मत की, आहें भरने से आगे बढ़कर हाथ पकड़ने की कोशिश की
तो एक थप्पड़ ने उनके 14 तबक रोशन कर दिए। बड़े चौधरी साहब के आगे मैं बहुत रोई पीटी कि मैं तो आपकी सबसे छोटी बेटी से भी छोटी हूँ, मगर वो ऐसी बातों का क्या असर लेते। कहते थे मुझे चूजों की यखनी बहुत अच्छी लगती है। उस वक्त उनकी नई शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे और नई दुल्हन मुझसे उम्र में बराबर ही होगी। एक वक्त में 2 शादियां उन्होंने नहीं की कभी। पहली तो खानदानी थी, उसकी जगह कौन ले सकता था। दूसरी आती जाती रहती थी। फिर तुमसे शादी क्यों नहीं की उन्होंने? वो हंस पड़ी। आप बहुत भोले हो सर। मैंने बताया ना कि हम मीरासी थे जात के। मैं मिस यूनिवर्स होती तभी ये मुमकिन नहीं था। कुछ दिन के बाद मैंने सियासत खेली। मैंने चौधरी साहब के हरम में रहना कबूल कर लिया। कनीज बन के और उन पर ऐसा जादू चलाया कि वो मुझे स्कूल भेजने पर राजी हो गई। मैं चाहती थी कि मैट्रिक कर लूं और फिर भाग जाऊं। उस मास्टर के साथ? नहीं, वो तो बाद में फरेफ्ता हुआ था मुझ पर। पहले तो मैं सोलो फ्लाइट लेना चाहती थी। मैं सोलो फ्लाइट की इस्तिलाह पर हैरान रह गया। उससे पहले वो मिस यूनिवर्स का हवाला दे चुकी थी और गांव तो गांव, शहर की मैट्रिक पास या कॉलेज की लड़कियां भी कम से कम सोलो फ्लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो कहेगी कि मैं अकेली निकल जाना चाहती थी। मैंने कहा, सुलोनी, ये अल्फाज तुमने कहाँ से और किससे सुने? चौधरी साहब के मुअज़्ज़ज़ मेहमान पढ़े लिखे होते थे, शहरी लोग, सरकारी अफसर। वो शिकार खेलने आते थे और मुझे भी शिकार की एक डिश के तौर पर उनकी खिदमत में पेश किया जाता था। तुम उस मास्टर की बात बताओ, उससे तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? उसने एक गहरी सर्द आह भरी। मैं मैट्रिक में थी जब एक दिन उसने मुझे मोहब्बतनामा लिखा। वो उर्दू फारसी पढ़ाता था और बीए पास था। उसने मेरी होमवर्क की कॉपी में सब लिख दिया और यह भी लिख दिया कि अगर इसका जुर्म है तो माफ कर दूं। मैं उस्ताद हूं और मुझे अपने ही शागिर्द पर बुरी नजर रखते हुए शर्म आनी चाहिए, मगर मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने रहती हो तो मैं कहीं और नहीं जा सकता। अगर मैं उसकी शिकायत करूंगी तो वो चौधरी साहब उसे नंगा करके चौक में मुर्गा बना देंगे या मुंह काला करके गधे पर मेरा जुलूस निकालेंगे। मेरे माँ बाप मेरी इस हरकत पर सदमे से मर जाएंगे। जाहिर है उसके बाद खत मैंने उसे वापस कर दिया और उसकी जसारत का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। लेकिन उसके बाद खतों किताबत का सिलसिला होमवर्क की कॉपी में जारी रहा। फिर गलती मुझसे हुई। मैं कह नहीं सकती कि ये खेल कितना अरसा जारी रहता और फिर इसका अंजाम क्या होता। वो जो मैंने सोचा था या उसने चाहा था, इश्क और मुश्क के लिए तो मशहूर है कि छुपाए नहीं छुपता। ऐसे ही मेरा हुस्न शबाब था। फिर इश्क दिल में कैसे न जागता। दर्जनों को नखुवत से ठुकरा दिया, किसी एक पर तो बिलाखिर मेरा दिल भी आना था। अगर मैं हर रोज के मोहब्बत नामे हर रोज पहले की तरह तल्फ करती रहती तो न जाने कब तक उस इश्क पर भी पर्दा पड़ा रहता। मैं उसके तमाम मोहब्बत नामे एक कॉपी में रखती थी और उसे उन सब कॉपियों के दरमियान में रखती थी। चौधरी साहब की छोटी बीवी को मुझसे बड़ा बैर था। वो चौधरी साहब की हम रुतबा, बहुत खूबसूरत और नौमर थी, लेकिन जाहिल थी और चौधरी की मुझ में दिलचस्पी उसे नागवार गुजरती थी। एक दिन उसने मेरी अदम मौजूदगी में मेरा बैग देखा कि आखिर कितना पढ़ रही है और ऐसी बातें कैसे सीख ली हैं। वो ऐसे ही 4-6 जमात घर में पढ़ चुकी थी। उसने वो कॉपी देख ली और उसके हाथ में तो जैसे एटम बम आ गया। उसने सीधा वो कॉपी ले जाकर चौधरी साहब के सामने रख दी। बस कहानी खत्म। उस दिन के बाद मैंने ना स्कूल की शक्ल देखी और ना मास्टर की। वो गायब हो गया, ऐसे जैसे दुनिया में अपना वजूद ही नहीं रखता था। गायब हो गया यानी भाग गया। उसने मुझे बड़ी दुखी नजरों से देखा। वो ऐसा नहीं था। अब ये लोग किसी को गायब करते हैं तो फिर वो किसी को नजर नहीं आता, किसी को नहीं मिलता। कुछ पता नहीं मैदान हश्र में वो मिट्टी से निकलेगा या पानी से। सुना है उसके घर वाले भी आए थे, माँ और बहन। बहुत रोई, लेकिन उन्हें कौन बताता। सब लाइलमी में सर हिलाते रहे। फिर तुमने शादी नहीं की उसके बाद? हो जाती उनकी रस्म के मुताबिक अगर मैं चाहती, लेकिन मेरा दिमाग उलट गया, उल्टी समत में चल पड़ा। मैंने उन सबको कसम मान लिया। उनकी रस्म क्या है? ये घर के मुल्ला को बुलाकर किसी से 2 बोल पढ़वा देते हैं अगर उसे घर में डालना हो तो, और फिर खलीफा को बुलाकर
दो गवाहों की मौजूदगी में उनकी बीवी क्या किसी भी औरत के लिए उसे नाकाबिल बना देता है। रस्म के मुताबिक ये कार्य खैर वही खलीफा करता है जो बचपन में मुशर्रफ व इस्लाम करने के लिए बुलाया जाता है। ओह माय गॉड, मैंने सर पकड़ लिया। ये वो वक़्त है इंसान की यहाँ वहाँ क्या, ये जो हम कमी कमीन हैं ये इंसान समझे ही कब जाते हैं। और तब से तुम चौधरी साहब के लिए हाउसमेट हो और उनके मेहमानों की दिलबस्तगी का सामान। वो कुछ तजब्जुब के साथ मुझे देखती रही। मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ। आज से पहले कभी किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। तुम्हें खतरा है कि ये सब मैं छोटे बड़े किसी चौधरी के सामने दोहरा ना दूं, तो एतमाद रखो मुझ पर। मैं उनमें से नहीं हूं, चंद रोज में चला जाऊंगा। ये एक हादसा था कि मैं हवेली में पहुंच गया था। अब तुम अकेली हो। मेरा मतलब था कि तुम्हारे माँ बाप मर गया है। माँ है, चौधरी असगर अली के बड़े भाई के घर में मुलाजिम है। एक भाई था जो 14-15 बरस की उम्र में घर से भाग गया था। क्या करता यहां रहकर? अच्छा किया। सुना है दुबई चला गया था। और तुम अपनी बाकी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगी? जीना मरना क्या मेरे इख्तियार में है? जो थोड़ी बहुत अक्ल और तालीम थी उसे मैंने बड़ी चौधरी के लिए वक्फ कर दिया। खुद के अलावा मैंने उससे पूरा फायदा उठाया जो और कहीं ना होता। उसने एक मुरब्बा जमीन मेरे नाम कर दी, चोरी छुपे जेवर भी बनवा कर दिया। अब उसकी तफसील में क्या जाना कि इसके बदले मैंने उसे क्या दिया। मैंने उसे वो दिया जो कोई बीवी ना दे सकती थी। पुराने नवाब क्यों जाते थे तवाइफों के पास? उन्हें कोठे की औरत से वो जहनी तस्कीन मिलती थी जो घर की औरत देना ही नहीं जानती थी। लेकिन जब बड़े चौधरी साहब बाहर से पढ़ लिख कर आए तो हवेली में जैसे सदियों के खानदानी निज़ाम की बुनियादें हिल गईं। अंजाम आप जानते हैं। छोटे चौधरी ने जमीन जायदाद के मामले अपने हाथ में ले लिए। बड़े चौधरी साहब फिर से दुनिया की सैर को निकल गए। सब कहते थे कि ज्यादा पढ़ने से बोझ पड़ा तो उनका दिमाग चल गया है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है अब उनके वापस आने के बाद? हाँ, मेरा भी तो दिमाग चल ही गया था। मेरे छोटे दिमाग पर वो बोझ भी ज्यादा था। औरत को बस थोड़ी सी दीनी तालीम काफी रहती है, या उमूर खानादारी। उन्होंने ही मुझे कल याद किया। रंगीला ने मुझे उनका पैगाम दिया था। तुम कहाँ थी? चौधरी अकबर ने मामलात संभाले तो पहले मेरी छुट्टी की थी। उसे क्या दुश्मनी थी तुमसे? कोई सलोनी उसकी भी होगी या शादी कोई। ये बात शायद सब समझते हैं, कहता कोई नहीं। चौधरी अकबर की भी नजर थी मुझ पर। गांव में रस्म सी बन गई है, लड़की उस वक्त तक जवान नहीं होती जब तक चौधरी अकबर उसे सर्टिफिकेट न दे। शादी नहीं हो सकती उसकी। कोई कर ले तो दुल्हन शबे उरूसी हवेली में गुजारती है। कोई इस वैश्याना रस्म के खिलाफ बोलता नहीं? वो हंसने लगी। आप भी भोले बादशाह हो, बोल सकता है कोई यहाँ? जो पहले बुराई थी अब दस्तूर बन गई थी। मेरे मामले में वो बाप से मात खा गया था। उसे क्या अंदाजा था कि इस उम्र में भी अब्बा जी का दिल उससे ज्यादा जवान है। बस पेचोताप खाकर रह गया, क्योंकि वो उस वक्त भी 30 का था, एक शादी कर चुका था। उसकी एक ही बीवी है? हाँ जी, एक ही है। वो बोली। एक और थी, वो भाग गई थी जब बड़े चौधरी साहब ने हवेली के मामलात उसके सुपुर्द किए। तब भी मैं महफूज रही, कुछ चौधरी असगर साहब की वजह से, कुछ अपने दूसरे ताल्लुकात की वजह से। 5 साल मैंने बड़े बड़े लोगों का दिल खुश किया और फिर मैं शहर चली गई। यहाँ क्या था मेरे लिए? और फिर मुझे वहां रंगीला मिल गया। दरअसल मुझे बहुत नाज था अपने हुस्न पर। मैंने सोचा पहले फिल्मों में कोशिश कर लूं। मैं भी चली जाऊंगी। फिल्मी तजुर्बात की कहानी में कुछ भी नहीं। ये रंगीला वहां रोज धक्के खाता था, कॉमेडियन बनना चाहता था और रंगीला की ऐसी नकल करता था कि खुद रंगीला ने उसे 100 रुपए इनाम दिया था। सिर्फ 100 रुपए? तो और क्या, 1 लाख देता? या कहता कि अच्छा अब मैं आराम करता हूं, तुम मेरी जगह काम करो ठेके पर, आधे पैसे मेरे आधे तुम्हारे। फिर रंगीला एक थिएटर कंपनी में चला गया जो गांव-गांव घूमकर मेले ठेले करती थी। वहां उसके फक्कड़पन पर देहाती हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे और वो रवानी में ऐसी बातें कर जाता था कि औरतें मुंह में पलट ठूंस के लाल हो जाया करती थी। उसने मुझे भी साथ चलने को कहा। मैं सिर्फ एक बार गई, फिर कान पकड़े। फिर हम लाहौर आ गए और मैंने रंगीले को एक टैक्सी खरीद दी।
उसने बड़े चौधरी साहब को मेरा पैगाम पहुंचाया था कि सलोनी मिलना चाहती है, आप तशरीफ लाएं। वो तशरीफ लाए चोरी छुपे। मैंने दरख्वास्त की कि ज़मीन का सौदा करा दें, न मैं काश्त कर सकती हूँ ना फरोख्त। ये काम उन्होंने कर दिया। मैंने एक 5 मरले का घर खरीद लिया समनाबाद में। फिर अचानक उनके फर्जंद का चौधरी अनवर अली का पैगाम मिला कि फौरन आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे हवेली के अंदर की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, मैं हाउस कीपर बन सकती हूँ। मैंने फौरन जवाब नहीं दिया कि मैं फिर उस कुएं में गिरना पसंद नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और मैं रंगीले के साथ आ गई। आगे का कुछ पता नहीं। कैसी लगी ये कहानी आपको? क्या कहानी खत्म हो गई या अभी इसी अंदाज से चलोगी? तुम अपनी जिंदगी के इस चलन से मुतमईन हो? यही तुम्हारी कामयाबी है? अभी तो मुझे इसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वो बोली। खामोशी का एक वक्फा आया जिसमें वो फर्श को देखती रही और मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, एक एल्बम है तुम्हारे पास? जी, आप देखना चाहते हैं? उसने कुछ हैरान होकर पूछा। क्या इसमें तुम्हारी तस्वीर भी है या वो किसी और एल्बम में मिलेगी? मैंने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर गई और एक एल्बम लाके मेरे सामने रख दिया। मुझे खूब अंदाजा था कि इसमें किस किस्म की तस्वीर होंगी, फिर भी न जाने क्यों मैंने उसे खोल लिया। वही औरत जो कुछ देर पहले मुझे दावत नज़ारा दे चुकी थी, अब महजूब सी बैठी थी। मैंने एल्बम सरसरी नज़र से देखा। कौन है? तुम्हारी सहेलियां? उसी बाजार की मखलूक? आप यकीन करेंगे, ये मेरे जैसी शरीफ औरतें हैं। मुस्कुराइए नहीं, लेबल यही है मुझ पर भी। इनमें ज्यादातर कॉलेज की लड़कियां हैं और एक टीचर की बेवा है जिसे शौहर की मौत के बाद हकीर सी पेंशन के वाजिबात वसूल करने के लिए भी 2 साल ख्वार होना पड़ा था, और जब उसे रिश्वत मांगी गई तो उसके पास अपने आप को पेश करने के सिवा कुछ नहीं था। उसके 2 बच्चे भी थे। सलोनी, क्या तुम्हारे लिए ये कामयाबी काफी है? तुम इससे मुतमईन हो? मुतमईन कौन है सर? मुतमईन आदमी का ज़मीर होता है, एहसास होता है कि कामयाबी में खुशी भी है और नदामत नहीं है। उसने एक आह भरी। छोड़े सर, आपसे पहले कभी किसी ने नहीं पूछा कि सलोनी तू कौन है, बस ये देखा कि सलोनी कैसी है। शायद उसकी वजह यह हो कि आप उनमें से नहीं। आपने कहा था कि आप यहाँ मुसाफिर हैं। कुछ ऐसा ही है, हादसाती तौर पर इस खेल में शरीक हो गया। कैसे सर? अब आपकी बारी है। आपकी जिंदगी की कहानी कैसी है? मैंने कहा, कोई खास नहीं। अभी तो मुझे नींद आ रही है, मेरे सर में दर्द है, पता नहीं क्यों। कॉफी बना के लाऊं सर? वो उठी। तुम वाकई मेहमान नवाजी जानती हो, मैंने कहा। मैं आंखों पर हाथ रख के अपने बेड पर लेटा था जब उसने कहा, कॉफी सर, ये सर दर्द की गोलियां भी हैं। थैंक यू सलोनी, मुझे दोनों चीजों की जरूरत महसूस हो रही थी। वो अपनी कॉफी लेकर मेरे साथ बैठ गई। पैदा में इसी गांव में हुई थी, मगर मैंने अच्छे लोगों की मेहमानदारी की थी और बहुत कुछ सीख लिया। आप अब लेट जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, नींद आ जाएगी। नींद मुझे क्या आती, मुझे सुकून मिला उसके साथ ही। सलोनी के नर्म हाथों के लम्स ने मेरे जज्बात में उस आग को हवा दी जो एल्बम देखने से भड़की थी। शायद मुझे वो देखना नहीं चाहिए था। मेरे ख्यालात ने गलत समत इख्तियार कर ली। चौधरी अनवर अली ने अगर मुझे इस कोठी में भेजा था तो फिर इस औरत को क्यों भेजा? और ये औरत कौन सी शरीफजादी और पाकबाज थी? इसका तो काम ही वरगलाना है। मैं क्या करूं दावा पारसाई का? मुझे अपनी खुद ही बुलंद रखना थी तो क्या जरूरत थी उसमें दिलचस्पी लेने की? उसे नौकरानी ही समझता। सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे यूं लगा जैसे मैंने एक नई दुनिया में जन्म लिया है। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ वही था, लेकिन बदला हुआ लगता था। ये एहसास बेसबब था, वरना इर्द गिर्द सब कुछ वही था। शायद मेरे अंदर का आदमी वो नहीं रहा था। मेरा एहसास, एतमाद, जिंदगी पर यकीन और मुस्तकबिल पर भरोसा नया था। मैं बाजू की तकलीफ के बावजूद उठा तो मेरे लबों पर मुस्कुराहट थी, और गुस्ल के दौरान अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मैं गा रहा हूं, और एक अजीब सा गाना जो मेरी उम्र से कहीं ज्यादा पुराना था। गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा जमाना आएगा। हद हो गई थी। मैंने खुद से कहा,
जब मैं बाहर निकला तो उजले सफ़ेद लिबास में सुबह की निखरी धूप जैसी मुस्कुराहट के साथ सलोनी ने मेरा इस्तकबाल किया। उसके मेकअप से आरी चेहरे पर ऐसी कुदरती मासूमियत थी जो उसके माजी और हाल के शब रोज़ और उसके मामूलात से ज़रा भी मेल नहीं खाती थी। उसने मतानत भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, गुड मॉर्निंग सर, आप बेड टी लेंगे या नाश्ता करेंगे? 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं, मैंने बेयकीनी से कहा और तकिए के नीचे से अपनी रिस्ट वॉच निकाल के पहनी। मेरा ख्याल है कि तुम नाश्ता ले आओ। उसके पलटते ही मुझे अपने कैदी का ख्याल आया। मैं सलोनी के पीछे किचन में गया। वो कुछ हैरान हुई। यस सर। मुझे एक ट्रे में चाय और स्लाइस दे दो, 4 स्लाइस। यस सर। स्लाइस गर्म करूं या उन पर मक्खन लगाऊं? उसने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा। मैंने सोच के जवाब दिया, नहीं। अच्छा चलो लगा दो। उसने कोई सवाल किए बगैर ट्रे मुझे थमा दी। मैंने अकबर के कमरे का दरवाज़ा खोला और ट्रे नीचे रख के एकदम धक्का दिया। अगर एकदम से मैंने दिफाई अंदाज में गौता ना लगाया होता तो उड़ के आने वाली कोई चीज़ मेरे सर में लगती। वो चीज़ जो एक टेबल लैंप थी, खुले दरवाजे से बाहर जाके मेरे कमरे में गिरी। मैंने अकबर को सामने से रीछ की तरह हमलावर होते देखा। मैं मोहतात ना होता तो वो मुझे नॉकआउट करके मेरे ऊपर से गुजर जाता। ये मेरे जिस्म के दिफाई निज़ाम का खुद कार अमल था कि मेरा हाथ खुद बहुत हरकत में आया और एक भरपूर पंच उसके मुंह पर लगा। वो उलट के गिरा तो मैंने उसको ठोकरों में रख लिया। वो बुरी तरह से बिलबिलाया। मेरे मुंह से गालियों के सिवा उस वक्त क्या निकलता। शुक्र करो कि इस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर नहीं था, वरना मुझसे गोली चल जाती। लेकिन यह आखिरी मौका था। अब तुम्हारे लिए कोई रियायत नहीं। मैंने तय कर लिया था कि अब शाम तक या कल तक उसको फाका कशी की सजा दूंगा। जब मैं दरवाजे को कुफ लगा के निकलने के लिए पलटा तो मैंने सलोनी को देखा। वो हाथ में ट्रे उठाए खड़ी थी। ये वापस ले जाओ, मैंने धाड़ के कहा, और मुझे एक मजबूत रस्सी ला के दो। फांसी देनी है इसे। सलोनी ने एक नज़र चौधरी अकबर को देखा और खामोशी से पलट गई। रिवॉल्वर अब मेरे हाथ में था। चौधरी अकबर बिलबिलाने लगा, खुदा के लिए मेरी ये गलती माफ कर दें, आखिरी समझकर। जिंदगी का आखिरी मौका तुमने ज़ाया कर दिया। मैंने अपनी सांस पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारी लाश अब इस कमरे में पड़ी रहेगी और हड्डियों का ढांचा बनेगी। उसकी फरियादों, फोगा, गालियों और बद्दुआओं को नज़रअंदाज करते हुए मैं दरवाज़ा लॉक करके बाहर आ गया। कुछ देर पहले की मसरत और राहत का एहसास गायब हो गया था। जब मैं नाश्ता करने बैठा तो मेरी भूख भी मर गई थी, लेकिन सलोनी के नाश्ता मेज़ पर लगाने तक मैंने खुद पर काबू पा लिया था। आखिर मुझे ये क्या हो गया है? ये जेल में गुजारे हुए वक्त का असर था या उसके बाद शुरू होने वाले मुसलसल पुरखौफ फरार और बाद के हादसात का? मुझे इस दर्जा गुस्से में नहीं आना चाहिए। अकबर का रद्दअमल एक कैदी का रद्दअमल था और वो कोई आम कैदी नहीं था। उसने अपनी आज़ादी ही नहीं, अपनी हुकूमत, अपनी इज्जत और अपना ख़ानदान सब गंवाया था। मुझे इस बात को समझना चाहिए। सलोनी ने नाश्ता लगाया ही था कि मैंने कहा, सलोनी प्लीज़ वो ट्रे ला दो जो तुम ले गई थी। यस सर, उसने सुकून से कहा और ट्रे ले आई। सवाल ना उसकी ज़बान पर था ना उसकी आंखों में। एक बार फिर मैं कैदी के पास गया और नाश्ता सामने रख के उसे आज़ाद किया। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और दे रहा हूँ, किसी की सिफारिश पर। तुमने फिर बगावत की तो खुद समझ लो कि क्या होगा। चलो जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो। उसने तामील की और फिर बांधे जाने पर किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की। मैं 10 मिनट के बाद फिर नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो सलोनी ने दोबारा मेरे लिए बड़े सलीके से नाश्ता सर्व किया था। उसमें हर चीज़ फ्रेश और गर्म थी। मैंने कहा, बैठो तुम भी, अगर तुम पहले ही नाश्ता नहीं कर चुकी हो तो। थैंक यू सर, वो कह के बैठ गई। आपके लिए एक इत्तला है। एक तो फ़ोन ठीक हो गया है, अभी रिंग आई थी जब आप बाथरूम में थे। गुड। दूसरी क्या बात है? दोपहर के खाने पर बड़े चौधरी साहब भी होंगे, उन्होंने फ़ोन पर मुझे बताया था। हमने खामोशी से नाश्ता ख़त्म किया। सलोनी का चेहरा और रवैया वैसे ही रहा जैसे गुज़िश्ता शब या आज सुबह था। खुद मैंने ये मौजू छेड़ा। सलोनी, तुमने अकबर को देखा? उसके बारे में कुछ पूछोगी नहीं? आप ज़रूरी समझेंगे तो खुद ही बता देंगे। मालिकों के काम में मैं दखल अंदाजी नहीं करती, मैं अपने काम से काम रखती हूँ सर।
सलोनी ने शाइस्तगी से जवाब दिया। मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, हवेली और जागीर के मामलात अब चौधरी अनवर अली ने संभाल लिए हैं। जाननशीनी उनका हक था। दोनों भाइयों के दरमियान क्या वजह दुश्मनी है, उससे मुझे सरोकार नहीं। अनवर ने उसे मेरे हवाले किया था क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता है। तुम मुझे उसका दोस्त समझ सकती हो। यहाँ मैं मेहमान हूँ, शायद कुछ दिन रहूं। उसने नजर उठा के कहा, दोपहर के खाने में क्या होगा? ये शायद तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो कि क्या होना चाहिए, मगर बाजार से क्या मिल सकता है ये मैं देख लूंगी। आप बता दें बाजार कितनी दूर है सर? तुम खुद जाओगी? सारा सामान खुद उठा के लाओगी? बाजार तो करीब ही है, आगे बाएं तरफ को। फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। मैं सब कर लूंगी। अच्छा, ये पैसे लेती जाओ, मैंने कहा। वो जाते जाते पलटी। ले लूंगी सर, जब जरूरत होगी, उसने बड़ी अपनाइयत से कहा। इसमें कोई शक नहीं कि उस औरत का किरदार कैसा भी था, अपने रवैये से उसने मुझे बहुत मुतासिर किया था। आधे घंटे के बाद वो वापस आई और किचन में मसरूफ हो गई। उसका पुरसुकून अंदाज एक ही पैगाम देता था, मेरा काम खिदमत है और सिर्फ खिदमत, खा वो कुछ भी हो और कैसी भी क्यों ना हो। अगर उसने बड़े चौधरी साहब का इतना एतमाद हासिल कर लिया था तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वह औरत दिल जीतना जानती थी। मुझे अब बेचैनी से अनवर अली की आमद का इंतजार था। फोन यकीनन उसी ने बहाल कराया था, लेकिन अब मसला ये था कि मुझे हवेली का कोई फोन नंबर मालूम नहीं था। फिर मुझे सलोनी का ख्याल आया। उसने अपने बैग में से एक नोटबुक निकाली। ये टेलीफोन इंडेक्स थी, उसमें सबके फ़ोन नंबर्स थे। उसने नोटबुक मेरे हवाले कर दी। अनवर अली का फ़ोन नंबर तो मिल गया, लेकिन मुझे पता चला कि वह हवेली से गाड़ी लेकर कहीं गए हैं। वो शायद कहीं रास्ते में था। मैं नोटबुक के दूसरे नंबर देखता रहा। आम हालात में ये मायूब होता, मगर खुद सलोनी ने कुछ भी प्राइवेट नहीं समझा था। उसमें दर्जनों फ़ोन नंबर्स थे और नाम थे। उनसे मैं क्या जान सकता था? अनवर अली ने 12:30 बजे हॉर्न दिया तो मैंने दरवाज़ा खोला। मुसल्ला गनमैन और ड्राइवर ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। वो पैंट शर्ट में था जो बहुत कीमती और नए थे। मैंने उसकी तारीफ की। तुम बहुत पुरएतमाद, खुश और सेहतमंद लग रहे हो। उसने हंसते हुए हाथ मिलाया। ये जुमला मुझे कहना था। खैर, समझो कह दिया। सूरत हाल कैसी है? जैसी होनी चाहिए, नॉर्मल, मैंने कहा। और तुम्हारी खिदमत कैसी की कनीज़े खास ने? तुम्हारा इंतखाब गलत हो सकता है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। अब ये बताओ कि यहाँ और कितने दिन कैद तन्हाई में रहूंगा? अब कैसी तन्हाई? चुन के रफ़ी के तन्हाई भेजा था तुम्हारे लिए। वो बड़ी अच्छी हाउस कीपर है। मैंने फिर सलोनी की ज़ात और किरदार पर तबसरे से गुरेज किया। वहाँ सब ठीक रहा? अगर मैं बर वक्त कदम ना उठाता तो सब चौपट हो जाता। वो मेज़ पर पैर फैला के बैठ गया। यार, मैंने नाश्ता देर से किया था, अभी भूख नहीं है, खाना देर से खाऊंगा। मेरा हाल भी मुख्तलिफ नहीं। ऐसा करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। सलोनी जैसे जुमला ख़त्म होने के इंतज़ार में थी। उसने अंदर आकर अनवर अली को सलाम किया। कैसे हैं आप चौधरी साहब? जैसा तुम्हें नज़र आ रहा हूँ, अनवर अली ने कहा। खाना ठहर के खाएंगे, तुम कॉफ़ी बनाना भूली तो नहीं हो? वो मुस्कुराई। ये आपके दोस्त बताएंगे। आज सुबह वो खबीस थानेदार फिर से नमूदार हो गया था। पहले बहुत माफ़ी मांगता रहा, अपनी मजबूरी बताता रहा कि अफसराने वाला का हुक्म टाला नहीं जा सकता। मालूम नहीं आपके किस बदख्वाह ने आगे ये रिपोर्ट पहुंचाई है। मैंने कहा कि तमहीद मत बांधो, मतलब पर आओ। उसने कहा कि एक इत्तला ये दी गई है कि आपने अपने छोटे भाई अकबर अली को तहखाने में कैद कर दिया है, जहां साल भर आपको रखा गया था और तमाम मामलात आपने अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ अपने हाथ में ले लिए हैं। कल जो कत्ल हुआ था उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है और ये खाना तलाशी के वारंट मिले हैं। मुझसे कहा गया है कि बड़े चौधरी साहब का भी बयान लूं और हवेली के मुलाजमीन का भी। मैंने कहा, और तुम ये सब करोगे? ज़रूर करो। चलो पहले तहखाने में चौधरी अकबर अली को ढूंढ लेते हैं। वो मेरे साथ गया और वहां का मंजर देखकर उसकी सिट्टी गुम हो गई। वहां अजनास के जखीरे पर चूहे दौड़ रहे थे। जब वो मेरे साथ नीचे तहखाने में था तो ऊपर गुल चाचा ने हर एक को खबरदार कर दिया था कि कोई ये ना भूले कि थानेदार आज है, कल नहीं होगा।
थानेदार ने ऊपर आकर मुझसे अर्ज की कि जनाब अपना बयान भी लिखवा दें कि आपको कभी तहखाने में असीर नहीं रखा गया। मैंने लिख दिया कि जिसने भी ऐसी बेसरोपा रिपोर्ट दी है वो मेरा दुश्मन ही नहीं पागल भी है। मैं कैद में होता तो रिहाई के बाद रिपोर्ट ना करता, और मेरे अपने भाई और बाप के खिलाफ जिसने भी ऐसी रिपोर्ट लिखाई है उसे फांसी होनी चाहिए। थानेदार बड़ा परेशान हुआ। हवेली के मुलाजिम बारी बारी यही बयान दे गए कि सब खैरियत है। अकबर अली साहब शिकार के लिए गए हुए हैं दोस्तों के साथ। हवेली में कत्ल का क्या सवाल। गुज़िश्ता 6 महीने में किसी की तबई मौत भी नहीं हुई। उस एक दिन की बेवा को सामने लाया ही नहीं गया। थानेदार को क्या मालूम कि कल हवेली में कुल मुलाजिम कितने थे और आज कितने हैं। अब्बा जी को पल पल की खबर मिल रही थी कि क्या हो रहा है और किसने क्या बयान दिया है। उसके बाद वो क्या कर सकते थे सिवाय इसके कि मेरे और सबके बयानात की तायीद करें। थानेदार ने सुख का सांस लिया और 2 घंटे में सारी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके भाग गया। मैंने इशारों में वाजे कर दिया कि अगर मेरा वफादार रहेगा तो नौकरी चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी, वरना दूसरा थानेदार आ जाएगा तुम्हारे इंतकाल के बाद। उसकी हालत इंतकाल का लफ्ज सुन के बिगड़ गई थी। मैंने कहा, उर्दू में ट्रांसफर को कहते हैं जैसे कि इंतकाल अराजी। वो हंस पड़ा। सलोनी ने कॉफी दरमियान में रखी और लौट गई। अनवर उसे तारीफी नजरों से देखता रहा। मैंने कहा, गोया सूरत हाल पूरी तरह तुम्हारे काबू में है अब। यस, लेकिन बहुत से मामला तस्विया तलब हैं, उनमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। चुनाचा आज रात हम उसका उल्टा अमल करेंगे। एक्शन रिवाइंड। कल सीन फिर वही होगा जो पहले था। वो तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे उसके बाद इजाजत होगी जाने की? इजाजत? कैसी इजाजत? भाई मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ रहोगे अभी, और ये औरत हमारे साथ जाएगी। मैं इसकी इंतजामी सलाहियत का कायल हूं। ये बड़ी कारामद चीज है, मल्टीपर्पज। एक पर्सनल सेक्रेटरी से लेकर और भी ज्यादा। क्या तुम मान चुके हो? मैं मान चुका हूं, मैंने इतराफ किया। रेशम कैसी है? जैसा उसे होना चाहिए। उसकी मदद के जुर्म में जो मुलाजमा मारी गई थी वो हाउस कीपर ही थी, एक तरह से माँ की कनीज़े खास थी। रेशम को ना माँ की सपोर्ट हासिल होगी ना भाभी की, लेकिन मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। मैंने मानी खेज लहजे में पूछा, और आपके वालिदे बुजुर्गवार? वो हंसा। अब उनकी अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। मेरा ख्याल है उन्हें और अम्मा को हज की सआदत हासिल करने के लिए भेज दूं। उन्होंने पूछा नहीं कि अकबर कहाँ है? मैंने समझा दिया है कि बिल्कुल खैरियत से है। कल उनकी मुलाकात करा दी जाएगी। माँ बिल्कुल गुमसुम है, न रोती है न बोलती है, न खाती है न सोती है। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। मैंने डॉक्टर को बुलाया है शहर से। अच्छा, अब खाना खा ही लें, मुझे वापस जाना होगा। रात को फिर आऊंगा, तैयार रहना। अपने मुजरिम भाई से तो मिल लो। मुझसे कुछ ज्यादती हो गई थी, उसने हमला किया था मुझ पर। सारी उम्र वो सबके साथ ज्यादती ही करता रहा है। चलो, जितनी देर में सलोनी खाना लगाएगी मैं उससे मिल लूं, उसे कुछ तसल्ली दूं कि उसके साथ वो सलूक नहीं करूंगा जो उसने मेरे साथ किया। कल उसको उसकी बीवी से भी मिलवा दूंगा, बशर्त ये कि वो हंगामा ना करे। वो उठ खड़ा हुआ। मैं अनवर के साथ अंदर गया और दरमियानी कमरे का दरवाज़ा खोला। अब इसका इम्कान नहीं था, मगर मैं अकबर के गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार था। एकदम दरवाज़ा खोल के अंदर जाने के लिए मैंने दरवाजे को लात मारी तो कमरे का पूरा मंजर मेरे सामने आ गया। कुछ देर अनवर भी मेरे साथ साकित खड़ा देखता रहा। कहाँ है अकबर? अकबर वाकई नहीं था, कमरे में भी नहीं था। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। अकबर, कहाँ हो तुम? अनवर अली ने हैरानी और तजस्सुस के साथ इधर उधर देखा। वो सिर्फ दरवाजे से बाहर निकल सकता था और दरवाज़ा बाहर से मुकफ़िल था। मैंने फिर आवाज़ दी, अकबर, तुम जहां भी छुपे हुए हो सामने आ जाओ, वरना मारे जाओगे। बेड के नीचे से अकबर की अजीब सी हिज़्यानी हंसी सुनाई दी। तुम मुझे कैसे मारोगे जब तुम मुझे देख ही नहीं सकते, पागल के बच्चे। अनवर ने तशवीश से मेरी तरफ देखा। अकबर, हम तुम्हें बेड के नीचे से निकाल लेंगे खींच के। उसकी दीवानगी आमेज हंसी फिर से सुनाई दी। ये लो, एक और पागल का बच्चा आ गया। ओए पाटे खां,
जब मैं नजर ही नहीं आऊंगा तो मुझे कैसे खींच के निकालेगा? मैं गायब हो चुका हूं। अब मुझे भी कुछ तशवीश हुई। शायद उसके दिमाग पर असर हो गया है। अनवर अली ने नफी में सर हिलाकर सरगोशी की। ड्रामा कर रहा है। मैंने कहा, गायब कैसे हो गए तुम अकबर? छू मंतर से। एक जादू था मेरे पास। साईं छू मंतर डफली वाले ने सिखाया था मुझे। अब मैं तुम दोनों को देख सकता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। पर तुम बेड के नीचे क्यों छुपे हो? दरवाजे से क्यों नहीं निकल जाते? अनवर ने मुस्कुरा के पूछा। मैं तुम्हारी जान लेकर जाऊंगा सुअर के बच्चे, हरामजादे। उसने अनवर को गालियां देना शुरू कर दी। तू क्या समझता था, सब कुछ फिर से मुझसे छीन लेगा और ऐश करेगा? और ये तेरा हिमायती रुस्तम पाकिस्तान, टार्जन दा तुखम, तुम दोनों की सांसें रुक जाएंगी अभी। मैं तुम दोनों के गले का फंदा बन जाऊंगा। तड़प तड़प कर मरोगे तुम दोनों। उसने कुछ और फाहिश अल्फाज इस्तेमाल किए। अब मेरा शक भी यकीन में बदल गया था कि सदमे और शदीद मायूसी की अजियत ने अकबर का दिमाग उल्टा दिया है। अब बेड के नीचे घुसकर उसे जबरदस्ती बाहर लाने के सिवा कोई चारा न था। अगर बिलफर्ज वो इस यकीन के साथ हम पर हमला करता कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और अपनी माफूकुल फितरत शैतानी क़ुव्वत से हमारा काम तमाम कर सकता है, तब भी एक पागल आदमी को गोली नहीं मारी जा सकती थी। ये कैफियत आर्जी थी, उसका इलाज मुमकिन था या नहीं, ये सब बात के मसले थे। मैंने पीछे से सलोनी की आवाज़ सुनी। सर, खाना लगा दिया है। मैंने कहा, सलोनी हम आते हैं अभी 10 मिनट में। नीचे से अकबर ने हकारत से कहा, सलोनी 2 टके की औरत, मेरे बाप की और मेरी 1000 बार की इस्तेमाल की हुई जूती अब तुम्हारे सर चढ़ेगी। उसने सलोनी के बारे में मजीद बदतरीन बाजारी जबान इस्तेमाल की। मैंने रिवॉल्वर अनवर को दे दिया। मैं इसे निकालता हूं, तुम पीछे दरवाजा बंद करो और चौकस रहो। जरा एहतियात से, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अनवर अली ने परेशानी से कहा, उसके पास ऐसी कोई चीज ना हो। मैंने कहा, कमरे में तो कुछ भी नहीं था। फिक्र मत करो, मैं इसे निकाल लाऊंगा। नीचे अंधेरा है, वो शायद दीवार के साथ आखिरी कोने में होगा। टॉर्च होती तो अच्छा था। मैंने झुक के देखा। मैं देख लूंगा। और घुटनों के बल बैठ के और फिर उल्टा लेट के आहिस्ता आहिस्ता बैठ के नीचे घुसा। मेरी आंखें चंद सेकंड में देखने के काबिल हो गईं। वहां खूब अंधेरा नहीं था। अकबर का साया सा मुझे आखिरी गोशे में दीवार के साथ लगा हुआ दिखाई दिया। मैंने कोहनी के बल आगे से रखना शुरू किया। अकबर, आओ मेरे साथ, मैं जबरदस्ती करना नहीं चाहता। उसने मुझे मजीद गालियां दी। अभी तू मारा जाएगा, कुत्ते की मौत, खून उगलेगा तेरा भेजा। आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए मैंने एकदम उसकी टांग पकड़ ली। उसकी अंधेरे में चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं, मगर जहां वो था वहां से मजीद पीछे नहीं हट सकता था। पीछे से दीवार ने रास्ता रोक रखा था। उसके हलक से एक और भयानक गाली निकली और उसने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश में दूसरी लात मेरे मुंह पर मारने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी आंखें भी तारीकी में देख रही थीं और उसकी ये जारहाना कोशिश भी ऐन मुतवक्के थी। मैंने अपना मुंह बचा लिया, मगर उसका पैर मेरे कंधे पर लगा। मैं अब उसे नरमी या रहमदिली की रियायत देने के मूड में नहीं था। मैंने एक झटके से उसे घसीटा और तेजी से पीछे हो लिया। उसकी पिंडली का सबसे निचला और पतला हिस्सा मेरे हाथ ने जकड़ लिया। वो घिसट कर मेरे साथ आया। उसकी गालियों और धमकियों का शोर बढ़ गया था। अब वो न जाने क्या बेमानी लफ्ज दोहरा रहा था। मेरी समझ में सिर्फ भरत काम, गंडास, मजबूरन पाम जैसे अल्फाज आए। अपनी तरफ से वो काले इल्म का कोई मंत्र दोहरा रहा था, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता था कि वो हिंदी या संस्कृत के श्लोक और जादू के शब्द वगैरह नहीं थे। उसकी मज़ाहमत भरपूर तरीके से जारी थी और वो मुझे लाते मार रहा था। उसकी टांग दोबारा मेरे कंधे पर गुर्स की तरह लगी, मगर मैंने पीछे हटना जारी रखा और उसे घसीटता गया। वो भरपूर मज़ाहमत कर रहा था और मैं उसे वहशियाना कुव्वत और बेरहमी के साथ बाहर को घसीट रहा था। वो बाहर आ गया। बस करो अकबर, वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तुम मेरी गिरफ्त से नहीं निकल सकते। उसकी वहशियाना जद्दोजहद और लायानी बकवास अब दम तोड़ रही थी। फिर भी अंदेशा था कि मैंने उसे छोड़ा तो वो एक आखिरी हमला और करेगा। आसानी इसी में थी कि उसे नॉकआउट कर दिया जाए।
मैंने उसे हाथों के शिकंजे से आजाद किया और एकदम घुमा के अपना दायां हाथ उसकी कनपट्टी पर मारा। ये खड़ी हथेली का वार कोई भी जी होश झेल नहीं सकता था। वो एकदम बेजान होकर गिरने लगा। मैंने उसे संभाल कर फर्श पर डाल दिया। चंद सेकंड तक हम फर्श पर पड़े उसके बेहिस्सो हरकत जिस्म को देखते रहे और मैं अपनी फूल जाने वाली सांस पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। ये काम मैं नहीं कर सकता था, अनवर अली ने एतराफ किया। पागल आदमी की वहशियाना ताकत से निपटना मुश्किल भी होता है और खतरनाक भी। फिर भी यार, मुझे ये पागलपन मसनूई लगा। मसनूई भी हो सकता है और आरसी भी। ऐसी बेबसी और मायूसी की कैफियत में कौन नॉर्मल रह सकता है? एक रस्सी का बंदोबस्त करो कहीं से। अब इसे बांध के रखना जरूरी है, यह भी आध घंटे से पहले होश में आ जाएगा। मेरा ख्याल है आज मैं इसे ना ले जाऊं। मैं किसी डॉक्टर को लाता हूं जो चेक करे कि ये दौरा दिमाग की खराबी है या महज सदमे का असर या सिर्फ एक ड्रामा। दरवाजा खोलकर उसने सलोनी को आवाज लगाई। सलोनी किसी रूह की तरह खामोशी से नमूदार हुई। यस सर। और वो उसी खामोशी से गायब हो गई। देखो कहीं से कोई तार मिले या रस्सी। मैंने कहा कि एक साइकियाट्रिस्ट ही पागलपन की असली या नकली होने का फैसला कर सकता है। सलोनी ने पीछे आकर कहा, रस्सी तो नहीं थी सर, लेकिन ये हैं। ये क्या है? तुम्हारे दुपट्टे? यस सर। बल देकर रस्सी बना ली। ये 2.5 गज लंबी नायलॉन की रस्सी कोई टार्जन भी नहीं तोड़ सकता। उसने फर्श पर पड़े हुए अपने साबिक मालिक और उस चौधरी को देखा जो उम्र में अनवर से कम लेकिन ताकत और हुकूमत की नाकाबिले शिकस्त अलामत था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और आंखें तजस्सुस से खाली। उसने जमीन आसमान को उलट पलट कर देने वाले इस इनकलाब के बारे में कोई सवाल नहीं किया, न हैरत का और न खुशी का और न गम का। वो मुझे दुपट्टों की मदद से अकबर के दोनों हाथ पैर बांधते देखती रही। अब अनवर ने भी उसे नहीं कहा कि तुम क्यों खड़ी हो जाओ। मैंने अकबर के दोनों हाथ कमर के पीछे बांध कर कस दिए और टखनों के ऊपर तीसरे दुपट्टे को बल देकर बेड के एक पाए से बांध दिया। फिर हम दोनों दरवाजे को मुकफ्फिल करके बाहर आ गए। मेरा ख्याल है कि खाना खा के मैं चलता हूं, अनवर ने कहा और एक कुर्सी पर बैठ गया। इसको यहां से बाहिफाजत शिफ्ट करने के लिए तुमने क्या सोचा है? मैं उसके साथ बैठ गया। सुलोनी ने डिश और प्लेटों को आगे बढ़ाया। सर, ये आपकी पसंद की चीज थी। सॉरी सलोनी, मेरी भूख मर गई है, अब मैं एंजॉय नहीं कर सकता। फिर भी थैंक्स, वो बोला। मैंने कहा चेकअप यहीं हो जाए तो बेहतर है, फिर डॉक्टर इसे इंजेक्शन देकर सुला सकता है और हम इसे खामोशी से वापस ले जा सकते हैं। किसी बोरी में डाल के? डिक्की में? यही करना पड़ेगा सलीम। माँ बहुत अपसेट है, वो बेटे को देखना चाहती है। मैंने उसे बहुत यकीन दिलाया कि वो ठीक है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा। वो खौफ में मुब्तला है कि मैं भाई को छोड़ूंगा नहीं। अब्बा जी भी बिल्कुल चुप हो गए हैं। जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी ना मैं हिमायत करता हूँ और ना मुखालिफत। मैं तो बिला वजह इन मामलात में मुलविस हो गया हूँ। जो किरदार तुमने मेरी जिंदगी पर अपना इख्तियार हासिल करने में अदा किया है वो ना मैंने सोचा था और ना तुमने। शायद ठीक कहते हो तुम, लेकिन अब मैं इस गेम से आउट होना चाहता हूँ। और तुम समझते हो ये तुम्हारे इख्तियार में है? पहले जो तुमने सोचा था और चाहा था, क्या वो सब तुम कर पाए? और शायद अब रेशम भी बाप के चेहलम से पहले तुम्हारे साथ ना जाए। रेशम, वो मेरी मजबूरी थी। मेरा ऐसा ना चाहने के बावजूद वो मेरी मजबूरी बन गई। मुझ में और उसमें कोई जज्बाती रिश्ता नहीं था। मैं तो एक अजनबी हूं यहाँ, मगर उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में छोड़कर कैसे भाग जाता। अब जा सकते हो? हाँ, मुझे मालूम है कि तुम उसकी हिफाजत कर सकते हो मुझसे बेहतर। और यहाँ पर उसकी जमीन भी है और घर भी। ये सब कुछ होने के बावजूद वो अकेली तो है। वो तुम्हारे साथ ही जा रही थी। अब क्यों जाएगी? मैंने कहा। ओके सलीम, उससे बात कर लेंगे चेहलम के बाद। उस वक्त तक हालात भी पूरी तरह मेरे काबू में आ जाएंगे। अनवर, तुम्हें अंदाजा नहीं कि कितने संगीन खतरात मेरे पीछे आसेब की तरह लगे हुए हैं। लेकिन तुम्हें मेरे होते हुए किसी किस्म का कोई खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, अब तुम्हारी बचाना मेरा फर्ज है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने हथियार डाल दिए। ओके, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं,
मैंने नौरीन को खो दिया है और उसे तलाश करना मेरी सबसे पहली तरजीह है। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया। उस तलाश में भी मुझे अपने साथ समझो। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। ये बता दो कि मेरी ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। ये मुश्किल काम है दोस्त। मुझे मालूम है आज ही डॉक्टर आएगा। सलोनी बहुत अच्छी नर्स भी है, ये इसे संभाल लेगी। मेरी खातिर बस एक दिन और। उसने मोहब्बत से मेरा कंधा दबाया और बाहर निकल गया। 1 मिनट के बाद मैंने उसके कार के रवाना होने की आवाज सुनी। अब दोपहर ढलने लगी थी और मुझे नींद आ रही थी। न जाने मैं कितनी देर सोता रहा, लेकिन जब आंख खुली तो सलोनी आई। जब आप सो रहे थे तो चौधरी अनवर का फोन आया था, डॉक्टर मगरिब के बाद आएगा और उसके साथ रंगीला भी। रंगीला? मुझे कुछ बताओ रंगीले के बारे में। उसके बारे में मैं क्या बताऊं सर, वो तो देखने की चीज है। ऐसे ही तो उसका नाम रंगीला नहीं पड़ गया। वो हंसी। असल नाम क्या था उसका? माँ बाप ने मुश्ताक अहमद रखा था। कॉलेज में उल्टे सीधे शेर पढ़ने और बनाने लगा तो अपने नाम के साथ दीवाना का इजाफा कर लिया। मुश्ताक अहमद दीवाना, यानी MAD, मैड यानी दीवाना।